Welcome to another episode of Hustle Time. Hello Sameer sir. Hello Dinal sir. Hello Rachita. How did franchise insider come to your mind? At that time 2010 everyone in the job also wanted to leave and start their own business था कि बहुत बड़ी कंपनी बने कैपिटल तो होता नहीं है एंड आई ऑलवेज से एंटरप्रेन्योर अबाउट आप कभी प्लान नहीं कर सकते वो तो कूदना पड़ता है बिल्डिंग पे तो हम लोग कूद गए दैट्स हाउ वी बिकम सो बिग If I want to start a business, why would I not have my own brand or a restaurant, rather go for a franchisee? As per data, 90% of the own businesses get fail. अगर कोई 18-year-old and want to start a franchisee business, what are the parameters that they should look for? फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज So to start with, मैं जानना चाहूँगी कि why this career switch from a banking or an insurance industry to a completely new venture where I think you guys also didn't have an idea when you were starting. So why this switch and क्या था जो आपको motivate किया to start your own business? So first of all, thank you so much Rachita for having us on this show. Definitely, we used to work with banking and insurance and that was a wonderful journey what we started in 2002. मतलब मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि हम इनिशियल स्टेज पे थे जब प्राइवेट सेक्टर गॉट ओपन फॉर दिस बैंकिंग एंड इंश्योरेंस फील्ड एंड दैट वाज अ वंडरफुल कैरियर फ्रॉम दी आई वुड से फिट ऑन स्ट्रीट टू मिडल मैनेजमेंट लेवल तक हमने सारे एक्सपीरियंस किए हैं जो सेल्स से लेके मैनेजमेंट लेवल पे हमने सारे एक्सपीरियंस वी डिड इट स्पेशली माई लास्ट असाइनमेंट जो मैं और धीनल वी वर मोर इन टू इंश्योरेंस पार्ट थिंग्स वर गोइंग वेरी गुड बट येस कहते हैं ना कि एक तो बीइंग अ गुजराती एक एंटरप्रेन्योर का कीड़ा भी होता है दूसरा एक चीज़ था कि डेफिनेटली इनटू दिस इंडस्ट्री कुछ चीज़ें ऐसी थी जो शायद हमारे रूटीन बिलीफ या प्रैक्टिस से डिफरेंट हो रही थी सो वी थॉट कि नहीं लेट्स मूव अहेड कुछ करते हैं दिस इज़ द टाइम और अब नहीं तो कब बिकॉज व्हेन वी स्विच ओवर 2012 सो मे बी वी वर अराउंड 31-32 तो मैंने बोला अब नहीं तो कब 45-50 पे तो नहीं सो देन दैट वाज द सिनेरियो कि नहीं लेट अस स्टार्ट समथिंग ऑन आवर ओन एंड देन द जर्नी शिफ्टिंग टू फ्रेंचाइज इनसाइड इज अगेन इंटरेस्टिंग बट आई थिंक लेट्स अलाउ धीनल टू शेयर दैट So I was an NRI banker. So basically, if you know all NRIs and all Gujaratis, Patels, Motels, and businessmen, so every time they come and they share their success stories, I have 10 motels and I have 50 motels and 100 motels. So that was a point where we thought like, let me now jump out of this job and let's do business. And insurance as a sector or a banking as a sector was only about sales. There was nothing about more than that. And second thing, being a banker, I used to manage as an investment more than 100 CR at that time. So the objective was I used to sell different kind of products. The products like art fund, real estate fund, offshore funds. So these are all intangible products. Okay. So same, we started understanding it. So the expertise of finance and selling or understanding of this intangible products, what we call it as a franchisee also. So today what we do is started franchisee from the physical asset to an intangible assets. So that's why we collaborated together. We launched Franchisee Insider and that's how we joined and we are doing it since almost now a decade more than that. Okay, understood. Also, बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि there are a lot of businesses out there. Clothing industry हो गया, media industry हो गया, etc. and everything is booming. Plus, also as sir mentioned कि coming from a Gujarati background, आपके दिमाग में हमेशा वो होता है कि business start करना है. But how did franchisee insider come to your mind? Because this is something I don't think a lot of people will be aligning with and also having an understanding कि क्या है, कैसे करना है. तो how did you both decide कि ये करना है हमें? See, honestly speaking, at that time, what I feel is everyone in the job also wanted to leave and start their own business. Second thing, ऐसा दिमाग में था कि बहुत बड़ी कंपनी बने, बहुत सारे एम्प्लॉय हो तो then you need a big setups, manufacturing units and everything. तो कैपिटल तो होता नहीं है. Again, we were an advisors.
So all things you club it together. So the goal becomes कि किसी को अगर job छोड़ के business करना है, so we come into the place. If somebody has a business and he wants to diversify, then we can be a good advisor. So all this mixed up together, and that's how it evolved as a good structured business model. And that's why we entered into a franchise as a business. And indirectly or directly, we create lot of employments, lot of entrepreneur dreams now. So that's the whole idea behind this. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो कहते हैं ना मार्केट कैश फ्लो बहुत था. सो रियल एस्टेट वगैरह वेर बूमिंग, इवन स्टॉक मार्केट वॉज बूमिंग, पीपल हैड कैश फ्लो. बट द प्रॉब्लम व्हाट वी फाउंड फ्रॉम, बिकॉज लुकिंग एट आवर कॉर्पोरेट बैकग्राउंड, लोग हमसे अलग सवाल करते थे कि बाकी सब ठीक है बट कुछ बिजनेस हो तो बताओ. सो बिजनेस हो तो बताओ. सो बेस्ड ऑन दैट वी अप्रोच मल्टीपल ब्रांड्स. They are ready to expand, but they look for investors, franchisees. So then we could connect the dots. So I would say yes, it was not a planned manner. Gradually वो पूरा structure बनता गया, and then definitely our जो भी corporate background हमारा था, it has helped a lot. And that way nowadays we are happy that we could help multiple people to become an entrepreneur. ऑल्सो ना बहुत बारी ये होता है कि व्हेन यू नो यू आर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, यू आर वेरी कन्फ्यूज टू वेयर टू स्टार्ट, हाउ टू गो अबाउट इट. प्लस जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो यू मे नॉट इवन हैव सो मेनी कॉन्टैक्ट्स इन द इंडस्ट्री to know how to go about it. So how did you guys manage, you know, getting contacts, getting in touch with people, then explaining what you do also? Because मेरे को लगता है at this point, even like today, franchisee is something which we relate to a lot of food brands and fashion brands, etc. But getting a deeper knowledge into it, understanding कि क्या क्या है. गुजरात obviously is a good place to start a business, but I don't think वहाँ पे भी इतना आपको exposure भी मिला होगा to understand कि this is the way we should follow, this is the path we should go in. So how did that happen for you? So I'll start with the first step. कि franchisee business तो later on, the first thing to take a decision of become an entrepreneur. क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में कहते हैं ना कि इट कम्स इज अ डिफिकल्टी एंड रिस्क. बिजनेस कम्स विद अ डिफिकल्टी एंड रिस्क. मे बी फॉर मी एंड दीनल वो शायद 3 times और डिफिकल्ट था, बिकॉज वी वर द फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर इन आवर फैमिली. सो ओरिजिनली माई फादर वॉज अ फार्मर, हिज फादर वॉज अ गवर्नमेंट सर्वेंट. So you can imagine, yes, surrounding business environment was there being in Gujarat, but from family वो चीज़ स्टार्ट करना तो डेफिनेटली वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है. बट शायद उसी चीज़ ने हमें हेल्प किया कि व्हाट वी डिफ़िकल्टी वी फेस्ड ड्यूरिंग बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर. सो फ्रेंचाइजी हमको ज़्यादा क्लिक किया कि हमारे जैसे बहुत सारे एन नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल जिसको एंटरप्रेन्योरशिप बनना है तो क्या ईजी रूट हो सकता है. सो इट कनेक्टेड द डॉट्स कि येस लेट अस गो इनटू दिस पार्ट. जो हमें टाइम लगा, पीपल शुड नॉट गो थ्रू दोज फेस. फ्रेंचाइजी के थ्रू हम उनको ईजिएस्ट और स्ट्रक्चर्ड वे में वी कैन हेल्प देम बिकम एन एंटरप्रेन्योर. Also, I would like to understand, जैसे you mentioned कि you both are like first generation getting into business. I am sure कि बहुत सारी difficulties आती है when you start. Like convincing your parents at that point is very difficult. Plus having a good career in something and then switching, मेरे को लगता है वो अलग ही pressure है family में. No matter how old you get, जैसे बोलते हैं कि parents के लिए बच्चे हमेशा बच्चे ही रहेंगे. They always want to see you flourish in your career. And then saying कि नहीं अब ये नहीं करना है, we are starting from zero, I know that it would be difficult. So how did you convince? Because I'm sure a lot of people watching this also would be planning to get into business, start a business. How did you guys go about it? I'll tell you my story. Yes. Because it's very, very interesting. Interesting, really interesting. So, see, maybe at my career stage, when we say 2010, I was almost at a 6-digit package. So, I was earning more than 10 lakhs. And I used to travel almost 6 countries. Means every quarter I was the winner for outside. And that's what I was making money at. Now, I had liabilities. I had a daughter coming in. I have bought a house. But at that I was around 28. So I told my father that I want to start a business. He said, यार इतना अच्छा कैरियर है, क्यों कर रहा है? तो एक ही चीज़ है कि I told my father कि सेल्समैन हूँ, सेल्समैन आज कर सकता हूँ तो शायद फेल गया तो वापस सेल्समैन बन जाऊंगा. सो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी नाउ. बट इफ यू डोंट अलाउ मी, so then probably there would be a chance I'll be in a more liabilities. Maybe I'll have bigger house, maybe I'll have more kids. So वो पूरा system कभी अटकेगा ही नहीं. But any stage this risk is going to be the same. So he was bit say that it's your call, you do it.
And I said, I'll never come back to you if I have any money problem. So he was at that mind कि ये पैसा वैसा डुबा देगा और मेरे पास आया तो. But I said, don't worry about the money, that I'll never come to you for money. That's my responsibility, but let me take a risk. And that's how I jumped into this as a business. I think same is with the Samir. He also had the same thought process aligned together. And that's what brought us together. So he also had the same thought process. Father ना बोलते ये है तो वो कूदना ही पड़ता है. And I always say entrepreneurs about suicide. आप suicide कभी प्लान नहीं कर सकते. वो तो कूदना पड़ता है बिल्डिंग पे. तो हम लोग कूद गए. अभी चल रहा है आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. And that's how we become so big. And then pen and paper वाली story. Yeah. So I what I did was I tell my father कि एक काम करो, ये एक पेन पेपर लो, आप मुझे बताओ मैं कौन सी एज पे धंधा चालू करूँ. टुडे आई एम 28, आप बोलोगे 32, फिर बोलोगे 35, तो 50 पे बोलोगे अभी एज हो गई है, 40 पे बोलोगे बड़ा घर ले लिया है. सो देयर इज नो परफेक्ट एज टू स्टार्ट इट. सो ही अंडरस्टूड दैट. आई कन्विंस हिम, बट इट इज ऑलवेज यू हैव टू बी रिबेलियन. दैट्स वेरी वेरी क्लियर. True. Okay, understood. Business start करने के लिए obviously you have to be rebellion. I would also like to understand from both of you. जब आप कोई business start कर रहे हो, the initial part is obviously finding a co-founder for it. What was that between you guys कि click हो गया कि हाँ this is the person I want to start a business with? Because I know a lot of friends also of mine have a lot of ideas कि ये करना है वो करना है, but वही है कि एक person अकेला सब कुछ नहीं कर सकता. You do need someone to be there as a partner, as a co-founder to start it. So how did you guys find each other and were like, ठीक है, this is the person I want to start this business with? So now what happened, we both had a same problem. So always problem attracts. That's first part of it. And second thing, whatever are my strength or my weakness, that's are his strength. So it is always positive and negative. I observe that he is good at many other aspects than me. Maybe I am very fast decision maker. He thinks on the other part of it. Sometimes he plays a vital role in that. And I also have a different objective that let me expand faster, let's grow faster. So that's what always keeps us motivating and working together as a co-founder. So we probably in last 10 years, we have never discussed accounts also as a co-founder. We just believe that let's make a company big. Rest everything will fall in place. So that's the attitude, or maybe that's the right way of founding a right co-founder. And the reality is that we were not at all friend at all, because we were not even knowing to each other before, when we met. We had some common context, then we realized that we have a corporate background. So यार दिनल कुछ अलग करना है. That was the thought. तो gradually करते गए and धीरे धीरे कारवा बनता गया. ओके, अंडरस्टूड. तो आप दोनों ने एक दूसरे को तो ढूंढ लिया. आगे का प्रोसेस इज फॉर्मिंग अ टीम एंड प्लस ऑब्वियसली न्यू वेंचर, तो डिफिकल्टी है टू अंडरस्टैंड कि कौन सा टीम मेंबर होना चाहिए, हु वुड बी योर फर्स्ट हायर, हु वुड बी योर सेकंड हायर, कौन सा हायर कुड वेट, कौन सा है कि अभी ही चाहिए. तो हाउ डिड यू गाइज फिगर दैट जर्नी ऑल्सो, एंड हाउ मच इज योर टीम साइज राइट नाउ, हाउ आर यू गाइज प्लानिंग टू ग्रो? थोड़ा उसके बारे में आइडिया. See what happened when we started, we were only 2 people. Now उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा टीम बना सकते हैं. वी डोंट हैव फंड्स ओनली. सो वी borrowed some 3 lakhs from someone and we started an office at Surat. That's what the first thing. And then we hired 2 staff at that time just to support us. That's what, because any calls come, any clients come, they were just supporting as a team member. We don't have any hierarchy structure at that time also. And eventually we almost operated for 2 years in Surat. And then suddenly we find it that this city has not that potential like a bigger cities. Okay. So at some stage of point, we started discussing that if we have to grow, somebody has to move out. And we opened one office in Ahmedabad. So that was around 2017-18. We opened up an office. That office started well. Again, there was one of my friend who joined us, but he had some different objectives. Later on, he understood. So he said, okay, I cannot continue. So we were on the dead end. So the point was that I used to travel for a week to Ahmedabad. I used to stay there. I used to every day think कि ये तो प्रॉब्लम में फंस गया, फैमिली सूरत रह गई, मैं अहमदाबाद आ गया. So one fine day, I called him at the night कि in 24 hours I am moving to Ahmedabad. You take care of Surat. I am moving with the family. So I convinced my wife, because that was the toughest problem. But yes, my wife's house is at Ahmedabad, so it was one positive aspect. So immediately I shifted to Ahmedabad, and there we started from 6 people.
smaller office but 6 people team. In Surat we at that time had a 2 people team, so total 8 people team. We started operating in Ahmedabad, and that's what were the center, because the objective was either I have to come to Mumbai or I have to come to Ahmedabad. So Ahmedabad was very familiar to me. So we started from Ahmedabad, and today if I say we are a team of more than 20 plus people. So Ahmedabad itself has a team of 15 people. We have other team members across India. So you can say Bangalore, Mumbai, Pune. So we have team members, they are getting associated. So that's how we are growing and multiplying very faster. ओके अंडरस्टूड ऑल्सो आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि जैसे अब टीम सेटअप एंड ऑल तो हो गया अंडरस्टूड बट अगर समवन न्यू हैज़ एन आइडिया कि फ्रेंचाइजी बिजनेस होती क्या है बट हैज़ नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू एक्सपांड इट हाउ टू ग्रो इट या हाउ टू ऑल्सो गो अबाउट इट आई एम श्योर कि आप दोनों की भी अलग अलग जर्नी रही है ऑफ लर्निंग हाउ द प्रोसेस इज एंड टू meet midway and understand कि ठीक है this is how we are going to operate in future because starting में I'm sure कि बहुत सारे mistakes हुए होंगे बहुत सारी learnings भी रही होगी तो if a new person watching this and want to start a franchisee business a little overview of how to go about it would be great for the audience watching this. We created everything from the scratch. So yes, on ground activities, parallelly social media at that point of time start हुआ था, काफ़ी boom हो रहा था. So that is also we took help of social media. Parallelly it was a learning, but yes, one thing was very much sure कि हाँ मैं और दीनल हमेशा मानते हैं कि एज अ फाउंडर हमारा 2 चीज़ प्रायोरिटी होता है और होना चाहिए, दैट इज़ मार्केटिंग एंड इनोवेशन सेल्स के साथ, और सेल्स के लिए मार्केटिंग इज़ व्हाट इज़ नीडेड. सो इवन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब बहुत स्मॉल स्केल पे कर रहे थे वी नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन ऑल दोज एस्पेक्ट्स कि वो चीज़ तो करना ही पड़ेगा. सो दैट वॉज वॉट वी डीड. येस टू हेल्प पीपल और द कस्टमर्स जिसे आप बोल सकते हो, सीकर्स जो भी बोल सकते हो, तो मैं बोलूँगा हमारा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस हमें काम लगा बिकॉज जो कॉर्पोरेट में हमको बार बार ट्रेनिंग में सिखाया गया था, मल्टीपल ट्रेनिंग्स, नीड एनालिसिस, क्लाइंट की नीड्स को समझो, ज़रूरत को समझो, जो आज वो रूटीन मे बी शायद 20 साल पहले वो चीज़ इतना लोगों को समझ नहीं थी, विच हैज़ हेल्प्ड अस कि इस इंडस्ट्री में भी लोगों की नीड को समझो. पीपल आर इन, वो कहते हैं ना, दे गेट इन्फ्लुएंस. भाई यहाँ से मैं मुंबई गया, अरे यार समीर वो बढ़िया ब्रांड देखा था, मुझे वो फ्रेंचाइजी चाहिए. फाइन, आपने देखा था, यू आर गेटिंग इम्पल्स, फाइन. वेदर इट इज़ सूटेबल फॉर आर सिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे फैक्टर्स हैं. इट इज़ सूटेबल फॉर यू, आपके लिए कितना वो सूटेबल है, आप उतना टाइम दे पाओगे नहीं, आपने देखा कि वो क्या टाइम कमिटमेंट मांग रहा है, क्या बजट मांग रहा है. सो मल्टीपल फैक्टर्स वी नीड टू आइडेंटिफाई. सो दैट इज़ वॉट वी हैव स्टार्टेड गाइडिंग, which has helped us gradually. Yes, आज की तारीख में तो it is highly structured, बट कहीं ना कहीं हमने उससे चालू किया था जिससे आज की तारीख में we can have a very big database जो हम पे भरोसा करते हैं. 10 साल बाद भी वो फ्रेंचाइजीज सुनेंगे तो भाई इनके पास जाओ बिकॉज दे विल फोकस ऑन नीड्स. ओके, आई एम श्योर आपके कॉर्पोरेट बैकग्राउंड ने इसमें बहुत हेल्प की है बिकॉज इट ऑब्वियसली प्रोवाइडेड यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ सेल्स वर्क, हाउ एनालिटिक्स वर्क. बट अगर कोई 18-year-old है जो स्टार्ट करना चाहता है, बिकॉज आई डोंट थिंक विद फ्रेंचाइजी देर इज सो मच इन्फॉर्मेशन ऑल्सो अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. ऑब्वियसली यू कैन डू सम बेसिक रिसर्च बट coming from the founders it would be more helpful. तो अगर कोई 18-year-old start करना चाहता है तो what are the parameters that they should look for कि ये चीज़ I have to focus on if I'm getting into this business? So see, first point is 18-year-old. Now if we see, these are all, you can call it as a Gen Z people, right? So they are all structured. Yes. Point is that Gen Zs are system driven. We can say that. So even if you order on a Zomato or anywhere, it's a systems which makes you order, right? So first and the foremost thing is he has to do a research that whether the brand he is going to invest or he is going to take a franchisee is system driven or not. If there are no systems and no processes, believe me, none of the brand can sustain that. That's a very hard fact. See, even in banks we used to work, it's a system driven. Bank is entirely a system driven. That's how corporates are built. Same is if you want to buy a franchisee, first and the foremost step is system driven. Then second thing, he has to start looking for other aspects, whether we call it as like a marriage. Okay, so he has to understand it, whether that founder of that brand owner has the same mindset like mine or no. If there is not familiar,
it's going to have surely a clash eventually. So he should never enter into that. That's another aspect of it. So what we do is, when we have an inquiry, we have an entire process of counseling to him. Then second round, we make that franchisee seeker to meet the founder of that company, so he understands that how it is. Then third steps comes is, we make him a tour or maybe a physical tour of the entire systems. If it is a restaurant, we tell him that this is how the restaurants are operated. This is how the food is being supplied in the logistics. This is the support what you are going to get it. So then he starts getting a confidence, and that's how somebody has to look. If an 18-year guy want to buy a franchisee, he has to have this mindset of following the processes, and that's how he can be a successful franchisee owner. ओके अंडरस्टूड ऑल्सो जैसे आपने इसमें मेंशन किया कि देर इज़ अ फाउंडर एंड देन देर इज़ अ क्लाइंट हु कम्स इन यू मेक देम मीट आई ऑल्सो वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम अ वेरी founder perspective, if I want to start a business, why would I not have my own brand or a restaurant, rather go for a franchisee? I would say reverse. If a person have that capability, risk taking capability, कि जो वो खुद से कहते हैं ना, वो जो जर्नी कर सकता है कि 5-10 साल जो स्ट्रगलिंग फेज अगर वो कर सकता है, he can create business from scratch, he can create a product from scratch, services, create a team, create fund or maybe getting fund for the business. जो सारे हसल कहते हैं ना जो बिजनेस में होते हैं, अगर वो सब कुछ कर सकता है, R&D कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, तो डेफिनेटली ही शुड गो फॉर ओन बिजनेस. बट अगर वो डिफिकल्ट लग रहा है, जो जनरली होता है, बिकॉज एज पर डेटा 90% ऑफ द ओन बिजनेसेस गेट फेल. सब लोग वो कहते हैं ना, वो कर नहीं पाते हैं सक्सेसफुल जर्नी. 10% बिजनेस गेट्स सक्सेस. देन गो फॉर फ्रेंचाइजी, बिकॉज फ्रेंचाइजी आपको एक रेडीमेड प्रोडक्ट दे रहा है, सिस्टम दे रहा है, प्रोसेसेस दे रहा है टू फॉलो. उससे भी बड़ी चीज, यू आर गेटिंग अ मेंटोर इन टर्म्स ऑफ फ्रेंचाइजर. आपके खुद के बिजनेस में आपको कोई मेंटर नहीं मिलेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा. यहाँ आपको रेडीमेड मेंटोर मिल रहा है, राइट. सो अगर वो हजल नहीं हो रहा है, आप आजू बाजू देखना बंद करो. जस्ट चूज अ फ्रेंचाइजी विच सूट्स योर रिक्वायरमेंट एंड योर नीड. एंड अगर आपको पता होगा, एक कहावत है गुजराती में कि वो 1000 दिन गादी गर्म करनी पड़ती है. बट वॉट वी फील इज, वाई टू हैव दैट लर्निंग कर्व. See, in the past, what happens probably when maybe 20 years back, when we used to take a franchise, our parents used to say, धंधा अपना ही होना चाहिए, किसी का धंधा नहीं करना है आपको. But today what we see is the new age entrepreneur which enters into the market already have funds, easy access to the funds. Then why to take that learning curve of 1000 days? Instead of that, you learn fast. You open 2-3 businesses together. So we have clients who have 2-3 franchises in within 1 year. That's the beauty of it. So he diversifies into 3 sectors. He invests into 3 sectors and he makes money. And even as an economy aspects, or it's always said that you should never lay all the eggs in one basket. The same way he can diversify his risk from the current business also, and he can make money. So that's why if somebody chooses this as a franchisee, as a business, definitely with the right advice, he is absolutely going to make money. That is for sure. ओके अंडरस्टूड. ऑल्सो आप दोनों इतने टाइम इस इंडस्ट्री में रहे हो, एंड आई फील जब आई वॉज इन 5th or 6th, दैट्स व्हेन मैकडोनल्ड्स स्टार्टेड एज अ ब्रांड इन इंडिया. बट नाउ आई एम श्योर कि बहुत सारे फ्रेंचाइजी है आउट देयर हु गिव देयर आउटलेट्स, दिस दैट. How have you seen this industry evolving over these years? So definitely we have seen from the stage जब बोल सकते हैं teenage stage में थी, because it's been 25 to 30 years हुए हैं for the franchise industry to launch in India. It has been very much matured in countries like USA, highly structured also. Scenario was very different at that point of time. Maybe the knowledge was limited to metro cities, to be very frank, when we started. शायद Tier 2 Tier 3 सिटी में पता था ऐसा कुछ होता है, बट कैसे होता है, क्या होता है, नो. मैंने जैसे बोला ना कि गेटिंग एन इन्फ्लुएंस फ्रॉम अ बिगर सिटी, दिल्ली जाके आया, वो कर सकते हैं, बस उतना पता है. कैसे कर सकते हैं, दैट ही वॉज नॉट अवेयर. सो दैट वॉज द सीनेरियो. नाउअडेज ट्रेंड हैव चेंज बिकॉज द न्यू एज जनरेशन डू लॉट ऑफ रिसर्च ऑनलाइन, राइट. तो वो देखते हैं कि क्या चल रहा है, व्हाट आर द ट्रेंड्स, मेरे सिटी के हिसाब से क्या चल रहा है. प्लस द गुड पार्ट इज Tier 2 and Tier 3 सिटीज़ हैव इवॉल्व. लोगों की
earnings has increased, spending capacity, the habits have changed. मतलब 10 से 12 साल में हमने देखा it has changed a lot. So yes, now doors are open into those cities, whether brand बोल लो जो वहाँ से evolve हो रही है, that has an opportunity. Same time opportunity with the seekers कि they can easily approach suitable brands from the metros, और या तो local brands के साथ वो connect कर सकते हैं. अगर डेटा की बात करूँ तो आई थिंक इट्स $150 के आसपास का इट्स मार्केट ऑल टुगेदर, एंड इट इज़ ग्रोइंग बाई ऑलमोस्ट 35% ईयर ऑन ईयर. सो दैट इज़ द स्टैटिस्टिक्स. बट फिर भी इतना डेटा होने के बावजूद इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट आफ्टर USA. बट यू विल बी सरप्राइज टू नो रचिता दैट सिर्फ 10% बिजनेसेस अभी तो इंडिया में फ्रेंचाइज पे गए हैं. ओके. सो द स्कोप इज सो ह्यूज, अभी अनटच है. So if we look at the data of an Indian market, every month there are around 10 to 15 lakh people who look for franchisee as an opportunity, that is online plus offline, and there many are not audited because somebody knows us and he comes directly. That's one data. Second thing, majority of the people are from tier 2 and tier 3 cities, and their budget is between 2 lakh to 50 lakhs. So 70% of the people who come to us has a budget between 2 lakh to 50 lakhs. So that's what they are ready to invest or to deploy the money to start a franchisee. So that's a very amazing data. So you imagine being this much only, we are second largest. Assuming this data increases by 35% every year, what kind of volume it can generate as a business. Second thing, what we observe in 10 years, people even see, like whenever we have a problem, we go to a doctor, any medical problem, we have a legal problem, we go to the lawyer. But people don't know there is a franchisee advisor or there is a franchisee consultant who can guide them. So most of the time, whenever people come to us, यार ऐसा भी कोई सर्विस होता है. सो मैनी टाइम्स हमको पूछते हैं आप क्या करते हो, तो हम बोलते हैं सर हम फ्रेंचाइजी बिजनेस में. मतलब किसकी फ्रेंचाइजी देते हो? सर वी एडवाइस. यानी एडवाइस मतलब, सो पॉइंट इज दैट दे डोंट नो देयर इज एन एडवाइजर इन दिस बिजनेस. सो दैट इज व्हाट द अवेयरनेस हैज टू बी, दैट यू नीड एन एडवाइजर फॉर दिस, बिकॉज एनालाइजिंग 100+ businesses. So today as a company, if you ask me, we can have a thoughts on food and beverages, we can thought on retail, what is how education as a sector, service industry as a sector, which includes gyms, salons. So we know almost all the businesses. Now that knowledge, if somebody wants to take it, he has to come to an advisor. He cannot do research this online, that what are the trends, how it is going to perform, what are the cash flow. So education has a different cash flow, F&B has a different cash flow, retail also has a different cash flow. So that's what I would like to emphasize. You need a franchisee advisor now, which is, India is at that stage, you need an advisor. So I would like to add something that Dhinal rightly said that awareness was not there. So especially because we come from tier 2 cities. So I was been part of multiple, some networking organizations also. टेक्निकली मैं बोलूँ रचिता, लोगों को बताने में टाइम लगा. व्हाट इज दैट बोले फ्रेंचाइज कंसल्टेंट, ऐसा भी होता है. बट आई एम रियली हैप्पी कि भले वो मुझे काफ़ी साल लगे, बट नाउ दोज बिजनेसेस हैव ग्रोन. जिन्होंने कभी मुझे पूछा था कि ऐसा भी होता है, फ्रेंचाइजी पे हो सकते हैं, उसके भी एडवाइजर होते हैं. नाउ दे आर अप्रोचिंग अस आफ्टर मे बी 7, 8 or 10 years. यार समीर, नाउ आई हैव इवॉल्व, आई वांट माय बिजनेस टू गो ऑन फ्रेंचाइजी, हाउ कैन यू हेल्प अस? सो एटलीस्ट नाउ वी आर हैप्पी कि हमने एटलीस्ट ऑन इन दो सिटीज़ अवेयरनेस जो फैलाया था, लोगों को अभी समझ आ रहा है कि दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड we cannot do it alone. We need experts for that. True, and rightly said. I don't think a lot of people are aware कि there is an advisor who can actually help you out with this. मेरे को लगता है कि अभी भी लोग जानते हैं कि ये मॉडल्स है, ये फ्रेंचाइज है, बट दे डोंट नो कि हम कैसे अप्रोच करें, क्या करें, कितना बजट होना चाहिए. एंड आई गेस दैट्स वेयर यू गाइज कम इन टू ऑल्सो make that match happen. I would also like to know, जैसे आपने mention किया कि US में it's still a very bigger market, but इंडिया में अभी भी वो उतना grow नहीं हो रहा है. Do you feel that is because कि Indian mindset अभी भी उतना adaptive नहीं है towards business, franchisee business in particular? So हमारे यहाँ गुजराती में कहावत है इनिशियली कि जब when franchisee was started, so son used to ask to his father कि पापा ये फ्रेंचाइजी करना है. maybe I'm talking about 20 years back. બોલે ધંધો તો પોતાનો જ કરવાનો, બીજાનો ધંધો થોડી થાય. સો દેટ વોઝ ધ સેઇંગ, राइट. सो कहीं ना कहीं दैट वॉज पार्ट के वो चीज़ें हो नहीं पा रही थी.
फिर दूसरा स्टेज आया, वो बेटा और स्मार्ट निकला, बोले पप्पा આપણે શીખી લેવાનું પછી આપણે જાતે કરવાનું. सो अब हम सीख लेते हैं एंड देन वील स्टार्ट आवर ओन उसमें से, क्योंकि वो बिकॉज मेजर ऑफ द ब्रांड्स मे बी दे वर फ्रॉम अब्रॉड या तो यहाँ पे जो एक लेवल पे पहुँच चुकी थी, तो बोले हम सीख लेंगे और फिर वो हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे. दो इट इज़ नॉट अ राइट अप्रोच, क्योंकि आफ्टर डूइंग दैट प्रैक्टिस बहुत सारे लोग सक्सेस नहीं हुए हैं. मे बी 5 or 10% कुड एक्चुअली डू इट because it's not an easy task. But yes, the scenario has changed now. अभी की जो Gen Z generation, they understand कि मैं सब कुछ नहीं कर सकता. That is why I need someone who can help me. As Dinal said rightly, कि नहीं बस वो 1000 दिन भी क्यों दूँ मैं. So let us change that scenario, and that is why it is evolving. But yes, it is on a younger age. जैसे 27-28 साल हुए तभी वो young age पे आई है. Over there, it's been more than 100 years of franchise industry. It is highly structured. Even legally it is structured, and almost 70% business is over there which works on franchisee. So people don't hesitate too much if it is structured, because it has been supported by government also. There is a regulated body called Federal Trade Commission जो उसको support करती है. So people are not worried कि legally मुझे कुछ problem होगा. अगर वो legally structured है, at least I am secured by the support of government. So that is the difference between, mindset shift in US and India. Also इसमें जैसे आपने mention भी किया कि US में there are proper governance for this. क्या इंडिया में भी वो है या आ रहा है? What's the scenario in that case? See, last couple of years there has been a full evolved startup ecosystem. Yes, right? yes. But see, the logic behind startup ecosystem was to create more businesses and more jobs. So if we go, same is the franchisee business. There is a need of a franchisee ecosystem. Now, if I say that if it has been structured well, if we start developing now, it can create hundreds of employment. So I'll give you some statistics. If we someone takes one franchisee, okay, first thing is it's creating one entrepreneur. It gives jobs to 10 people. Okay. Second thing, it gives employment to 25 vendors. So even if you want to set up a restaurant, you need minimum 20 to 30 vendors. So directly, indirectly, they also make money. So imagine what kind of potential it is. But yes, what happens as a franchisee ecosystems, India doesn't have that laws. As Samir said, there is a franchisee disclosure document in USA which you have to sign. You have to write down all the things. You have to write down your vision, goals, your past performance of the outlet, and when you give it to someone, he study that, he goes to the lawyer also, and there are specific lawyers in USA who only works for franchisee as a business. So it is so matured that there are lesser chances of failure or lesser chances of anything going to be wrong committed. And there are agencies who works for all the research like location finding, supply chain, logistics. Entire ecosystem is developed as a franchisee, as a business. And even governments of US has a special fees on that. So if you want to open one franchisee in this state and you want to go to another state also, you have to get registered, you have to pay the fees to that province, and then you can open a franchisee. So that's what the whole ecosystem works. So that is missing in India, but I think in couple of years that would be a much needed, because if you want to create faster growth, then it is needed only. And second thing also, if you see most of these startups also, I am talking about the startups which already exist, right? They are also on a franchisee. Okay, take classic example, the Lenskart, which is coming up with an IPO. They have more than 1100 plus stores. So that is also a franchisee business. So there are many brands which are on franchisee. So that's a needed for even a support to a startup ecosystem. Understood. And as far as government part, what you have asked for, तो यहाँ पे एक चीज़ कुछ मैं I would like to add over here कि yes, government has started spending. पिछले 10 सालों से the new government is majorly focusing, because India का अगर हम देखें after independence, what was the biggest problem? That is creating employment. Right. All governments are fighting for that कि कितना employment हम generate करें. But then 10-11 years back, government finally realized कि it's not a capacity नहीं है government अकेले की to create employments. Rather start creating entrepreneurs who would then create more employment जो हम नहीं कर पाएंगे. So then वो ecosystem जैसे अभी share किया दिनल है, they focus on startup. That really I really appreciate कि वो जो बड़ा ecosystem अभी बन चुका है
पीपल आर नाउ पैशनेट कि मुझे भी एंटरप्रेन्योर बनना है. कॉर्पोरेट से बहुत सारे लोगों को हमको स्पेशली सैटरडे संडे आते हैं फोन्स या मैसेजेस के हमें जॉब छोड़ के करना है. बात अलग है, मंडे वो जोश चला जाता है, मंडे 9 बजे तक जैसे कॉन कॉल आता है उसका जोश चला जाता है. बट एटलीस्ट पीपल हैव स्टार्टेड थिंकिंग दैट वे. हाउएवर बहुत सारे गवर्नमेंट बेनिफिट्स हैं, योजनाएं हैं स्टार्टअप सपोर्टिंग के लिए. बट आई सजेस्ट इफ सम फंड्स जो गवर्नमेंट ने जो भी फंड रखा हुआ है, मे बी मेनली 50,000 CR और वॉट एवर फंड अलॉट किया, उसका एटलीस्ट 10-20% भी वो स्पेसिफिकली फ्रेंचाइजी के लिए अगर अलॉटमेंट करते हैं कि मे बी टू सपोर्ट दोज ब्रांड्स जिनको इवॉल्व करना, और मे बी दो फ्रेंचाइजी सीकर्स टू हेल्प देम फंड, तो डेफिनेटली मतलब ये जो रेशियो मैंने बोला 10% उसको 20% लेके यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड आई वुड से सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप. स्टार्टअप का सस्टेनेबिलिटी और फ्रेंचाइजी का सस्टेनेबिलिटी में ह्यूज डिफरेंस है. सो दैट इज व्हाट वी लुक फॉर फ्रॉम गवर्नमेंट पार्ट. होपफुली और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी मिले लोगों को, प्लस गवर्नमेंट और ज़्यादा सपोर्ट भी करे. आई वुड ऑल्सो लाइक टू अंडरस्टैंड कि इफ़ एज अ क्लाइंट आई एम कमिंग टू यू, जैसे आपने बोला कि आपको सैटरडे संडे काफ़ी मैसेजेस आते हैं. इफ़ आई वॉन्ट टू अप्रोच यू गाइज एंड नो कि हाउ कैन आई स्टार्ट, मेरे को बस इतना है कि मेरे को कहीं इन्वेस्ट करना है, मेरे को एक फ्रेंचाइजी मॉडल में इन्वेस्ट करना है. हाउ, वॉट इज़ द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एंड हाउ वुड यू वॉक मी थ्रू इट, लाइक कैसे, कहाँ से स्टार्ट होगा और कब तक मेरे को पता है कि ठीक है, क्योंकि आई एम श्योर कि जितने भी क्लाइंट्स आपके पास आते हैं सबको वो रश तो होता होगा कि अभी आज ही मेरे को बता दो कि किस में इन्वेस्ट करना है, मैं करने रेडी हूँ. बट ऑब्वियसली आपको वो पर्सन का माइंडसेट, पर्सपेक्टिव समझना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड कि कौन से फ्रेंचाइजी में वो जा सकता है. तो हाउ इज दैट प्रोसेस फॉर यू गाइज? So I'll walk through the entire process of our company, how it works. So first step, once you come down as an inquiry, we have a whole set of questions which you have to fill it compulsory. Then it is vetted by our team. Okay, so they analyze it, and then we select couple of options. So there are few options as per your taste. You said I want to enter into a food or a retail, and if you are not aware, then we give you choose the only 5 options. We explain you how this industry works. That is most important. So first we will make you aware that if you are going into an education industry, this is how it will work. If you are going to an F&B industry, you have to give time. It is 365 days. 24/7. If are you mentally prepared? If you are not prepared, don't enter it. So that's the message our team conveys to the you. Then comes the second stage. The second stage is meeting with the respective founders of those brands. So there you start understanding how this businesses are working, what is a founder's passion. See, it's always observe you put money on the founder. Right, so that founder comes into the place, you start getting understanding, so he gets aware about it कि हाँ ये founder अच्छा काम कर रहा है, इसकी thought process मेरे जैसी है. फिर आता है तीसरा स्टेज कि now comes how, means what finance you need it. तो आएगा आपका पैसा कि भाई कितना पैसा लगेगा. So ऐसा नहीं आपने बोला 50 लाख तो मैं सीधा 50 लाख ले लूँगा. I'll tell you, आप इतना ही रचीता साइड में रखो. यू नीड टू हैव 6 months ऑफ वर्किंग कैपिटल विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. वर्किंग कैपिटल होगा ही नहीं तो आपका ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, यू विल क्लोज डाउन वेरी फास्टर. सो दैट्स द थर्ड स्टेप. वी एजुकेट अबाउट द एंटायर फाइनेंस प्रोसेस. वंस दैट इज डन, द डील गेट साइन. फिर वापस से हमारा इन्वॉल्वमेंट रहता है, दैट इज फाइंडिंग आउट अ राइट लोकेशन फॉर यू. सो बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज अ लोकेशन, तो यूजुअली आप क्या करते हो, सस्ता वाला लोकेशन ढूंढोगे और हम बिजनेस वाला लोकेशन ढूंढेंगे. सो वेयर वी ऑल्सो इन्वॉल्व आवरसेल्फ. सो दैट्स द फोर्थ स्टेप व्हेन कमिंग इनटू फाइनल. अभी चालू होता है यहाँ से आपका प्रोसेस कि एक बार लोकेशन सेटअप हो गया, फिर आता है लॉन्च. सो ड्यूरिंग दैट एग्जीक्यूशन पीरियड वी विल मेंटर यू कि लॉन्च भी होना चाहिए. सी वेन एवर यू सी दिस इंटरनेशनल ब्रांड्स और वेरी बिग ब्रांड्स, दे हैव अ स्पेसिफिक लॉन्च प्लान. क्योंकि कुछ वाइब तो होना चाहिए, ऐसा ही नहीं सिर्फ रिबिन काट दिया और चालू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता. सो यू हैव टू हैव अ वेरी गुड स्पेशल लॉन्च प्लान फॉर दैट. तो उसमें भी हम गाइड करते हैं कि ये सिटी में यही जगह पे आप इतना स्पेंड करो, ये बजट साइड में रखो, एंड देन इट बिकम्स अ लॉन्च. And we have observed if first 3 months goes very well, probably there is no problem with it because already सब due diligence हमने करके ही रखा हुआ है. So I can assure you that if you come down with 50 lakhs, definitely you will make money. That is for sure.
Okay, understood. And also, if I am planning to, start a franchisee, how much is the amount that I need in my bank account to make sure कि at least 6 months I can sustain? Because I think ये बहुत major problem है जहाँ पे लोगों को idea नहीं है कि कितना capital होना चाहिए. So, what would you guys suggest for this? सो जनरली फर्स्ट ऑफ ऑल वी आज द बजट कि भाई आपका टोटल बजट कितना है. वो बोले कि भाई एक्स अमाउंट 25 लाख, तो बट 25 लाख इज व्हाट टोटल यू हैव, राइट? इफ यू से कि दिस इज टोटल भाई इतना ही है मेरे पास, देन लेट अस चूज अ फ्रेंचाइजी विच इज वर्थ मे बी 15 lakhs. वाई? बिकॉज यू नीड वर्किंग कैपिटल टू रन द बिजनेस. कोई बिजनेस आपका डे वन से प्रॉफिट नहीं करेगा. वेदर इट इज़ अ फ्रेंचाइजी, आपको 6 महीने का वर्किंग कैपिटल रखना है. अगर आपने जॉब छोड़ा है, दीनल ने जैसे बताया, दूसरा इनकम सोर्स है, दैट इज़ फाइन, तो इट्स ओके. अगर वो नहीं है तो अगले 1 साल का एटलीस्ट आपका घर खर्च जो है वो साइड पे आप रखो. प्लानिंग दैट वे, देन चूज अ फ्रेंचाइजी रादर पुटिंग एंड टेकिंग अ रिस्क ऑफ पुटिंग ऑल योर सेविंग्स इनटू अ फ्रेंचाइजी. फिर पता चला, कई बार ऐसे गलती लोग कर बैठते हैं कि भाई जितना फंड डाल दिया, फिर पता चला वर्किंग कैपिटल तो है ही नहीं. सो इट कैन क्रिएट अ बिग पैनिक सिचुएशन फॉर दैट इन्वेस्टर. एंड विद दिस मीडिया मैं एक मैसेज भी देना चाहूँगा सारे फ्रेंचाइजी सीकर्स के लिए, क्योंकि नाउ दिस सेक्टर इज इवॉल्विंग टू Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़ जिनको शायद अभी भी अवेयरनेस नहीं है. Whenever you are about to choose a franchisee, मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा. क्या ऐसा होता है कि आप डॉक्टर के पास जाते हो, इफ़ यू आर नॉट वेल, कभी देखा है कि डॉक्टर आपके पास आपको बोलता है चलो ये दवाई है, आप चूज कर लो, ये लाल वाली येलो वाली कौन सी पसंद आई? इट नेवर हैपन्स, राइट? सो डोंट एक्सपेक्ट कि आपको कुछ भी इन्फ्लुएंस हो के आप ले लो, राइट? इफ़ यू आर गोइंग टू एन एक्सपर्ट, उनकी प्रोसेस को फॉलो करो. या तो पहले तो आप खुद से ड्यू डिलीजेंस करना सीख लो. इफ़ यू डोंट वांट टू कम टू एक्सपर्ट लाइक अस, ठीक है चलेगा, बट आप अपना ड्यू डिलीजेंस ठीक से करो, मेरे लिए क्या चीज़ सूटेबल है. इफ़ यू कैनॉट डू, कम टू पीपल लाइक अस, बट देन फॉलो द प्रोसेस. डोंट बी इन रश. जैसे पहले बताया कि अभी के अभी करना है, अगेन यू विल लूज ऑल योर मनी. देन यू विल से कि नहीं यार फ्रेंचाइजी में मैं फेल हुआ. बट द प्रॉब्लम वॉज आपने वो ड्यू डिलीजेंस सही से नहीं किया, वो प्रोसेस फॉलो नहीं की जो डॉक्टर के पास आप भरोसा करके करते हो. बस वो चीज़ आप करो. ओके, एंड आई ऑल्सो अंडरस्टूड कि ये जो आपका बिजनेस है दैट्स वेरी रिलेशनशिप ड्रिवन ऑन बोथ द साइड्स. सो आई एम श्योर ऐसे बहुत बार होता होगा कि समवन हैज़ कम टू यू, दे हैव स्टार्टेड, everything has gone, the process is working, but after maybe 4 months 5 months जो वो expect कर रहे थे कि ओ इतना रिटर्न आएगा, मेरे को उतना नहीं आ रहा है. तो are there people who back out after some time, या do you like find a middle ground and work through it? See, first let us go reverse कि fail क्यों गया अभी? Because now let's take an example. You come down over here, you say I want to start a food or maybe a cafe. अभी प्रॉब्लम ऐसा होगा, आपने बोला कि मैं आई मेक माई फादर सिट, मे बी ही इज एन एज, कैफे में कोई नहीं आएगा आपका. सो दैट इज अ फर्स्ट रीजन. मेनी टाइम्स वी सी पार्टनर्स बना लेते हैं. सो देयर आर 2 पार्टनर्स, एक बोलता है मैं जॉब करूंगा, तू बिजनेस चला. इवेंचुअली दैट प्रॉब्लम स्टार्ट्स, यार तेरा तो जॉब चालू है, मेरा तो पूरा दिन जा रहा है, मुझे पैसा ज़्यादा चाहिए. सो दीज आर वेरी वेरी स्मॉलर इश्यूज विच ऑलवेज एज ए ह्यूमन बींग इट्स गोइंग टू हैपन. पहले तो ये समझना चाहिए कि प्रॉब्लम का एक्चुअल रीजन क्या है, वेदर it is from your side or it is from the brand side. If it is from your side, then technically वो आपको internally solve करना. If we can guide you or help you out, then it is possible, right? जैसे मैं आपको एक बहुत example देता हूँ. हमारे पास एक brand था which used to do very well. There were 3 partners. अभी 2 पार्टनर अच्छा करते थे और they were doing a business. तो उनका फ्रेंड था, उसने बोला यार तू गाँव में बैठा है, आजा, मैं तेरे को सेट कर देता हूँ, बिजनेस पे बैठ जा. वो 2 अच्छा कमा रहे थे, ये पूरा दिन दे रहा था. ही स्टार्टेड गेटिंग अ ग्रीड. अभी उसने क्या किया, दिवाली का टाइम आया, बहुत बढ़िया बिजनेस है, कुछ नहीं किया, सिर्फ QR कोड चेंज कर दिया, सब पैसा उसके अकाउंट में और बंद करके चला गया. सो दिस हैपन्स, राइट. सो दिस आर द केसेस वेयर पीपल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इट. तो आपको ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट कि पार्टनरशिप किसके साथ करनी है. एज यू सेड कि को फाउंडर क्यों चुना हुआ है. सो ऐसे भी दीज आर ऑल योर को फाउंडर्स ओनली, राइट. पार्टनर्स आर योर को फाउंडर्स. सो उसको क्यों लिया है, सिस्टम में उसका स्कोप ऑफ वर्क क्या है, वो क्लैरिटी नहीं होती है. सिर्फ एक ही प्रॉफिट चाहिए, बट प्रॉफिट नेवर कम्स इफ यू हैव अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग विद द partnership or wrong understanding of a business.
Now second thing, how we end up if there is a problem on the brand side, ठीक है. So technically हम पहले से इतना due diligence करके रखा हुआ है कि there are very lesser chances of having a problem. Till now we understood this and we have already nullified this because we involve ourselves in entire process. अगर मैं आपसे इतना ड्यू डिलिजेंस करके क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, फिर मैं आपको जो लोकेशन भी ढूंढ रहा हूँ, मार्केटिंग प्लान भी दे रहा हूँ, एंड स्टिल देन यू आर फेलिंग, सो मे बी देयर इज सम मिस्टेक, and then if it can be rectified, we can help them to move the location. We can convince the brand owner कि भाई इसको और marketing करके देते हैं. We can ask the brand to put more money into it. So all those roles are there in throughout the process. So we are there till end. And मैं हमेशा बोलता हूँ कि in today's time divorces are very costlier, marriages are cheaper. So marriage बहुत सस्ता है, divorce बहुत महंगा है. So in a franchisee business also, divorce is very 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 costlier for both the parties. Okay, understood. Very great insight उसमें. Also, I would like to understand कि जैसे if I am coming to you guys and मेरे दिमाग में है कि मेरे को F&B में करना है, but it is not necessary कि I have a very good understanding of F&B because दूर से देखने पे it looks very fancy कि अरे इनके इतने सारे branches है, ये इतने सारी चीज़ें कर रहे हैं. I might be actually, I might not know it, but I might actually do good in some other business, maybe a gym franchise or something else. So how do you convince the client कि देखो ये आपके लिए नहीं है, this is what you should do? पहले तो मैं बोलूँगा F&B is 80% people who look for an F&B as a business. वो है ना बॉलीवुड जैसा है, everyone wants to enter into a food business. सबको ऐसा ही लगता है. See now ये फूड बिजनेस भी ऐसा है कि एवरी डे यू गो आउट एंड सी द रश, तो उसको ऐसा लगता है ये बिजनेस अच्छा ही है, एंड दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट बिजनेस. बट व्हेन यू अप्रोच अस, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज हाउ मच टाइम you want to give it. We can explain you what is the cash flow of F&B business. See, F&B business to start is easy, but it has a high operational cost. Customer नहीं आएगा तो भी rent देना ही पड़ेगा, salary देनी ही पड़ेगी. So if you don't understand this, so then we have to tell you it's better you go into an education sector. आप बोलोगे मैं तो टाइम नहीं दे सकती हूँ, मुझे तो वैकेशंस भी चाहिए. then yes, education is the best sector. वैकेशंस भी होते हैं, लोड भी नहीं होता है, सैटरडे संडे छुट्टी भी होती है. so there is nothing wrong in doing it. point is आपको बिजनेस करना है और पैसा बनाना है. सो इफ दैट इज द आंसर देन वी हैव अ सोल्यूशन. आपने ऐसा ही ठान लिया कि नहीं मुझे यही फ्रेंचाइजी लेनी है और F&B में ही जाना है, देन दैट प्रॉफिट डजंट कम, क्योंकि वो एक जिद है या वो एक इन्फ्लुएंस हो गया कि नहीं मुझे ये लेना ही लेना है, देन इट कैन नॉट बी वर्कड आउट. सो वी हैव अ साइंटिफिक अप्रोच टू दिस. इट्स नॉट दैट कि मैं आपको ऐसा बोल दूँ आप F&B में मत करो, आप जिम कर लो, मेरे पास जिम की फ्रेंचाइजी अच्छी है. बट इफ यू हैव अ गुड नेटवर्क, अगेन इसमें आपका नेटवर्क भी प्ले करता है. इफ यू हैव अ गुड हाई सोसाइटी नेटवर्क, yes, fitness can be a good aspect. If you have a very good network, it can be a travel business also, which you think it's a very big business. Now if you see everyone travels abroad and it's a huge business. The network works over there. So आप वो नेटवर्क से भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि दिस बिजनेस कैन बी कैपिटलाइज इफ यू टेक दिस फ्रेंचाइजी. Also, one very basic question that I have here is, जैसे हमको पता है कि F&B में फ्रेंचाइजी होता है, क्लोथिंग में फ्रेंचाइजी होता है, जिम्स में फ्रेंचाइजी होता है, विच आर दी अदर सेक्टर्स वेयर फ्रेंचाइजी एग्जिस्ट एंड पीपल माइट नॉट बी अवेयर कि ओ इसका भी फ्रेंचाइजी मॉडल है. So like majorly we always say there are three major sector: F&B, second is retail. उसके अंदर सब सेक्टर्स आते हैं, अपैरल से लेके शूज से लेके मल्टीपल एनी प्रोडक्ट विच आर सेलिंग इन स्टोर अदर देन फूड, दैट इज इनटू रिटेल. एंड द थर्ड विच इज एन एक्चुअली एन इवॉल्विंग सेक्टर, दैट इज सर्विस सेक्टर, जिसमें एज अभी दीनल ने बताया वैसे जिम कम्स अंडर सर्विस, पेस्ट कंट्रोल काइंड ऑफ सर्विसेज, वो सारी चीज़ें उसके अंदर आती है. ट्रैवल कम्स अंडर सर्विस पार्ट. सो मतलब हमने तो यूएसए में देखा था, बिकॉज सी मैं ड्यूरिंग कोविड हमने जो किया था ना कि वी डिड लॉट ऑफ रिसर्च, तो हमने कनाडा यूएस का मार्केट पूरा ग्लोबल हमने मार्केट स्टडी किया था. तो वहाँ ऐसे ऐसे कंसेप्ट पे आप सोच नहीं सकते हो. आपको मतलब मॉस्किटो मारने वाली ट्रीटमेंट की भी पूरी सर्विसेज, स्पेशलाइज सर्विसेज, एंड दैट इज ऑन फ्रेंचाइज इन वर्किंग सक्सेसफुली. ओके. सो एनीथिंग विच इज वर्किंग वेरी वेल, जिसका क्लाइंटल बेस है, हर बिजनेस इज हर सर्विसेज फ्रेंचाइजी पे है. बट यस, अभी भी इट इज लिटिल बिट अनटच मार्केट, बिकॉज शायद लोगों को उतनी अवेयरनेस नहीं है कि उसमें भी पोटेंशियल है. बट आई बिलीव
उसमें ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर आप वो चीज़ कर सकते हो, उसके साथ कमिट हो सकते हो। कुरियर बिजनेसेस, नेशनल इंटरनेशनल कुरियर लेवल की सर्विसेज, एजुकेशन में मल्टीपल काइंड ऑफ स्पेशलिटीज़ होती है। जैसे कि रिसेंटली हमारे पास एक लेडी थी जिनका स्पेशली शी टीच रीडिंग टू किड्स। ओके। तो स्पेशली उसका कंसेप्ट में उसने इतनी मास्टरी कर ली थी कि दैट कंसेप्ट वी क्रिएटेड ऑन फ्रेंचाइजी। सो सर्विस इज समथिंग विच इज़ अनटच, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं विच इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर फॉर फ्रेंचाइजी अदर देन दिस प्रोडक्ट बेस्ड और आई वुड से फूड बेस्ड मॉडल्स। ओके, अंडरस्टूड, दैट्स अमेजिंग। मतलब मेरे को भी नॉलेज थी कि F&B है, फैशन है, रिटेल है, बट येस देर आर मोर सेक्टर्स टू बी डिस्कवर्ड। आई वुड ऑल्सो लाइक टू अंडरस्टैंड, जैसे आपने कहा, इवन यू मैंशन सर कि यू गाइज हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन दिस थिंग। आई एम श्योर कि आपका 90%, 95% ऑफ द टाइम इज इन टू रिसर्च, बिकॉज अगेन फाइंडिंग अ गुड लोकेशन, networking with people, these are all the factors that people might not even think of. क्योंकि जब स्टार्ट कर रहे दिमाग में यही होता है कि हाँ, हम ब्रांड से बात कर लेंगे, ब्रांड आ जाएगा हमारे पास, क्लाइंट से बात कर लेंगे, क्लाइंट को मैच कर देंगे, हो गया, डन. But how do you guys, like, how much time in a day-to-day basis you guys get into research? Also, do you have like a specific team that helps you with research, and if yes, how many team members are there, and what is also your process for researching about all this? So first thing is that I am a very voracious reader. Means I have read so many books. Means almost all kind of books regarding to franchisee, also management, also. So that's first research I do. Second thing, research comes into it understanding various models. सो सबका एक अपना अपना प्रोसेस होता है बिजनेस एनालिसिस करने का, और आपको वो समझना पड़ता है. सो लाइक इन couple of years, if you see, there are swimming franchises also. So there are in Mumbai also, there are hotels where they teach kids swimming. So it starts from 1 year, 2 year also. So that's kind of business models are evolving. And this franchise is an alien concept. So most of the concepts which are evolved in USA, eventually they come to India. So that research, usually it's done by me in the company. Second comes the real estate part, which is a very, very, very tough. So now finding a property is one thing. And whenever we create the financials of any brand, we make sure that this has to be the budget allocated for a rental. So अगर वो 2 लाख है और वो हमको 3 लाख की प्रॉपर्टी मिल रही है, तो हमको वहाँ जाके देखना पड़ता है आज के टाइम पे कि 3 लाख का भाड़ा निकलेगा कि नहीं रेंट. दैट इज़ अ बिगर चैलेंज, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द ब्रांड्स क्लोजेस डाउन बिकॉज ऑफ द रॉन्ग लोकेशन और मे बी हायर रेंटल्स. तो वो एक रिसर्च हम करते ही रहते. एंड नाउ इफ़ यू से प्रोबेबली इन वेस्टर्न पार्ट, इफ़ यू नेम एनी सिटी, आई कैन टेल दिस, ये रेंटल इतना चल रहा है और यहाँ पे ये खोलोगे. And also when we create a franchisee module, so what we do is we analyze it very well कि ये ब्रांड होगी, उसके आजू बाजू यही लोकेशन होना चाहिए. इफ़ इट इज़ सूटेबल तो कॉलेज या ये क्राउड चाहिए ही चाहिए, ये हाई स्ट्रीट पे ही चाहिए, यही जगह पे होनी चाहिए. दैट रिसर्च ऑल्सो वी डू इट व्हेन वी आर डेवलपिंग अ मॉड्यूल. सो दैट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ अ रिसर्च. थर्ड टीम, जो हमारा टीम रहता है, वी हैव अ ओन डिजिटल टीम और परफॉर्मेंस मार्केटिंग. दैट ऑल्सो डू लॉट ऑफ रिसर्च ऑन द एड्स विच वी रन. यानी जो ब्रांड होती है वो भी सोचती है कि भाई मुझे कैसी एड्स दौड़ानी है, किस तरह से मेरा ऑडियंस आएगा. सो दैट परफॉर्मेंस मार्केटिंग टीम कीप रिसर्चिंग ऑन द वेरियस एड्स सो दैट यू कैन जनरेट अ बिजनेस आउट ऑफ इट. सो वी हैव 3-4 verticals, as I said. One is research from the books, evolving models. One is digital research, what we do it. And real estate, we are connected on network with so many people so that we get data from the market. So these are mainly 3 research what we focus on. And one more part, that is networking part, which majorly I take care. And it many time it is of course physical as well as through LinkedIn also. So through that way मैंने मतलब we could create network of people, good people, not just in India, even abroad. So that has also helped us in getting knowledge. India level पे क्या हो रहा है, जैसे मैं आज की तारीख में बोल सकता हूँ Tier 2 Tier 3 सिटी तक हम कनेक्टेड हैं. तो वहाँ की लोगों की सोच तक हमको पता है. मिडल ईस्ट से लेके UAE या USA में क्या चीज़ें हो रही है, उस लेवल का भी हमको क्लैरिटी है. एंड वी हैव पीपल ऑल्सो के जस्ट ऑन अ फोन कॉल वी कैन जस्ट आस्क एंड फॉर द हेल्प फॉर द इनपुट्स. सो ये 4-5 layers what we have created which is helping us in giving best of the best to our
clients. और जैसे आपने मेंशन किया, मैं एनीवेज आने वाली थी नेटवर्किंग पे, बिकॉज योर बिजनेस इज मोर ऑन द लाइंस ऑफ नेटवर्किंग. एंड अगर लाइक एज फॉर मी, अगर मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ तो कल को मैं जाके और ज़्यादा इवेंट्स अटेंड करूँगी वेर आई कैन मीट गेस्ट डिपेंडिंग ऑन वॉट इज़ द जॉनर दैट आई वॉन्ट टू एक्सपांड इन टू. अब जैसे अगर मेरे को फॉर दिस ऑल्सो, अगर मेरे को बिजनेस में ही करना है, आई विल गो टू टेक इवेंट्स, आई माइट गो इन टू डिफरेंट स्टार्टअप के जो इवेंट्स होते हैं. सो वेयर डू यू गाइज गो एंड एंगेज, बिकॉज इट्स नॉट रिलेटेड टू वन डोमेन फॉर यू गाइज. आपको रियल एस्टेट वालों से भी बात करनी है, आपको नए क्लाइंट्स भी ढूंढने हैं, आपको नए ब्रांड्स भी ढूंढने हैं, तो इट इज़ अ वेरी वास्ट स्प्रेड ऑफ पीपल अराउंड. तो इस सिचुएशन में आप नेटवर्किंग के लिए क्या, जैसे लिंक्डइन तो है बट स्टिल फाइंडिंग द राइट पर्सन ऑन लिंक्डइन इज ऑल्सो अ चैलेंज. तो आप कैसे क्या रिसर्च करते हो इसके पीछे भी, एंड हाउ डू यू गाइज ऑल्सो अप्रोच, एंड कहाँ कहाँ जाके आप नेटवर्क कर सकते हो टू मीट दीज काइंड्स ऑफ पीपल? So specifically, see, since I have been a part of some good networking, international networking organizations where I traveled at multiple locations across India and abroad. So वहाँ से, because see, it's not about a specific industry जो हमारे लिए काम की है. It is all about understanding all businesses. It can be real estate also, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें जुड़ी है. Understanding what manufacturing industries are also coming, because कल को वही, जैसे आज हमारे कुछ clients हैं who are manufacturer, but now they have evolved into a retail part. तो वहाँ से उनका अंडरस्टैंडिंग भी हम लेंगे, देन वो फ्यूचर में उनके लिए हम तैयारी करके दे सकते हैं. सो देर इज़ नो स्पेसिफिक, बट येस समथिंग रिलेटेड टू बिजनेस इन टोटालिटी, एंटरप्रेन्योरशिप विच कैन बी अ नेक्स्ट जेन एंटरप्रेन्योरशिप. ट्रेडिशनल बिजनेस तो हम, बिकॉज वो हमने काफ़ी ऑलरेडी PhD कर लिया है ट्रेडिशनल बिजनेस, बट येस व्हाट कैन बी, एज यू आस्क्ड अस व्हाट वुड बी द फ्यूचर. तो ऐसी जगह पे जहाँ पे फ्यूचर इवेंट्स हो सकते हैं, एंड दैट बिजनेस हैज पोटेंशियल टू गो ऑन फ्रेंचाइजी. तो वी ऑल्सो चूज, बिकॉज हर इवेंट में नहीं जा सकते हैं. मे बी IT बेस्ड इवेंट्स मे नॉट वर्क फॉर अस, राइट, बट वी वुड सी कि यस, अगर देर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसमें स्केलेबिलिटी है, देन anything which has a possibility of scalability, we would definitely love to attend and do networking. Same thing I look on LinkedIn also, कि जहाँ पे मुझे प्रोफाइल देख के लग रहा है कि यहाँ पे ये चीज़ कर रहा है, I immediately connect and try to arrange a meet, online meet. We just have a word, and if there is a synchronization, कुछ ना कुछ हम gradually we take it ahead. I'll add one more thing. See, networking means it's not always events. Technically, हमारा जो foundation है, we have been a digital company, I can say that. Every month we spend around 4 to 5 lakh rupees on ads. Okay, we get hundreds of leads of brand owners, what I am talking, and franchisee seekers on a day-to-day basis. Now imagine you meet every day 5 brand owners. Okay, that itself is a so much of data to consume, क्योंकि उसकी हर एक की अपनी स्टोरी है. सो पर्सनली मैं ऐसा बोलूँगा कि आई हैव मेट अराउंड 1000+ ब्रांड ओनर्स. इसमें से किसका 25 लाख का टर्न ओवर है, किसी का 400 करोड़ तक का टर्न ओवर है. Now everyone has their story to tell. So that's the main idea. Now what happens again when you go digitally, like podcast or maybe whatever the LinkedIn, that's a digital platform. So somebody is coming with a good profile, you're talking with them and you are getting a data. So that becomes a very good touch points. इसमें ही हमको ऐसे एंटरप्रेन्योर मिलते हैं, सर ये ऐसा आइडिया है लेकिन इसको फ्रेंचाइजी पे ले जा सकते हैं. सो दैट बिकम्स आर फीड, मीन्स दैट्स आर फूड फॉर द थॉट कि हाँ ऐसा कर सकते हैं. लाइक करंटली वी डेवलप्ड अ मॉड्यूल फॉर एन एलिवेटर, होम बेस्ड एलिवेटर कंपनी. इट्स इन चेन्नई. आई हैव नेवर बीन देयर, but we are doing very well on that, and it's a huge market. So as an elevator industry, what you think that elevator is a luxury, but home elevator is going to be a need. Okay, because see, if you see India as a market, it's an aging population. Every bungalow needs one elevator. So that's the research. Now that brand owner has so much research on an elevator industry because he has been into 25-30 years. That is a data for us to know about this industry, and then we go reverse, how can we develop on a franchisee as a system. So this is what I'm telling. Digitally, if you are very well connected,
then it is, you don't have to even attend the events. You can easily get all those data sitting in an office also. That's possible. And that's why we also stopped doing expos. See, what we observed from our research, that people attend expos, franchisee expos, but the person who is going to invest 50 lakhs once a year, maybe you will never go into an expo. आप जोमेटो पे मंगवा लेते हो, स्विगी पे बाहर से मंगवा लेते हो, आप वहां जाओगे ही नहीं, राइट? यू विल डू रिसर्च ऑनलाइन. एंड आर clientele is 25 to 35 years of age, जो पूरा डिजिटल ही है. So what we do is, we believe in this digitalization. Our entire company is digitalized. So from first point to till end point, we do digital consulting only across India. So today, sitting in Ahmedabad, I have developed a module in Lucknow, Chennai, Mumbai, Guwahati, everywhere. That's 100% online. So what we have done is, we have encashed this online platform or digital platform for our data also, research also, and expansion also. That's how we are developing now. Okay, we'll come to the social media angle later on. अब मेरे को लगता है कि from a franchisee seeker perspective, I've understood a lot of things. Now coming to the other part, which is brands. तो मेरे को अब समझना है कि as a brand owner, if I'm coming to you, what is the process and how do you guys also approach to a brand? कि obviously you guys also do your own research and everything, and आपको पता है कि ठीक है, this is something that's growing and हमको शायद इनसे टच में होना चाहिए. How is that whole process for you guys? Basically for brands, which is actually our core expertise, we have made a due diligence process. So सबसे पहली चीज़ तो एक है, हमने एक step 1 बनाया है, that is franchisee eligibility. Okay. तो we start from that. हमको फ़ोन भी आता है, because now people know us, तो they call us, अभी franchisee करना है वगैरह वगैरह. We say okay, we have a process, just follow that. We will check the eligibility. Because to be very frank, it is always good to say no. अगर कोई चीज़ रेडी नहीं है, राइट? हमारी इंडस्ट्री में ज़्यादातर केस में हमको नो करना पड़ता है. बिकॉज अगर वो बंदा, फॉर एन एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल के साथ आई विल शेयर, इफ़ वो बंदा खुद से जो बिजनेस कर रहा है वो खुद से सक्सेसफुल या प्रॉफिटेबल नहीं है, मेक्स नो सेंस कि भैया तू पहले तू सेट हो जा, फिर सोच फ्रेंचाइजी के बारे में, राइट? मे बी ही डज नॉट हैव इनफ लॉजिस्टिक या रॉ मटेरियल जो अपने फ्रेंचाइजी को प्रोवाइड कर पाएगा, सपोर्ट दे पाएगा, देन देयर इज नो सेंस इन टेकिंग दोज थिंग्स अहेड. टीम नहीं है उसके पास सपोर्ट करने के लिए, या मे बी मैनी टाइम्स बाकी सब है पर उसका माइंडसेट सही नहीं है. मे बी माइंडसेट ऐसा होता है कि यार फ्रेंचाइजी में क्या है यार, 5 फ्रेंचाइजी बेच देंगे, उसमें से पैसा बनाएंगे, फिर डेवलप करेंगे. दैट्स अ रॉन्ग अप्रोच, दैट्स अ बिग ग्रेट सिग्नल. तो वहीं पे हम मना कर देते हैं कि लेट अस होल्ड, यू आर नॉट रेडी फॉर फ्रेंचाइजी. सो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप, एलिजिबिलिटी व्हाट वी चेक. और उसके हमने एक थॉरो प्रोसेस बनाई है, देयर इज़ अ फॉर्म, सब कुछ वेबसाइट पे डाला है. और उसकी जो मीटिंग होती है दैट इज़ मैंडेटरी विद द फाउंडर्स ओनली. वो हमने क्लियरली मेंशन करा है, क्योंकि वहाँ पे हम एनालाइज करते हैं कि वो कितने हद तक एलिजिबल है. 15-20 मिनट के डिस्कशन या जो भी, वो इट टेक्स टाइम, वो एलिजिबिलिटी होती है, देन एंड देन वी शेयर एनी काइंड ऑफ प्रपोजल. सो दैट इज़ अ प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस व्हाट वी डू. एंड देन अकॉर्डिंग टू क्लाइंट का जो भी रिक्वायरमेंट है वगैरह, चूज करते हैं कि वो हमारी कौन सी सर्विस लेना चाहता है, एंड देन वी टेक इट अहेड. ओके, फ्रॉम अ ब्रांड परस्पेक्टिव आई थिंक देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लोर यहाँ पे अभी. तो जैसे आपने कहा कि चलो एक उसने बना लिया अपना, एक रेडी है, अब वो सोच रहा है कि उसको फ्रेंचाइजी मॉडल में जाना है. आई एम श्योर कि जब एज अ फ्रेंचाइजी सीकर स्टिल पीपल आर अ लिटिल बिट ओपन, बट जब एक ब्रांड ओनर है, उसको अपने ब्रांड से तो बहुत प्यार है और उसको तो अपना ब्रांड बेस्ट लगेगा ही लगेगा. तो उसके दिमाग में ही श्योर कि नहीं दिस विल वर्क, बट ऑब्वियसली देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व इन इट. एंड यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है, वन मोर फैक्टर इज इमोशन ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं. सो इन दो सिचुएशन हाउ डू यू ऑल्सो एक्सप्लेन द ब्रांड की नो दिस इज नॉट द टाइम, बिकॉज आई एम श्योर कि आप जब ना बोलते रहोगे दे माइट गेट ऑफेंडेड अ लॉट कि यार ऐसे कैसे ना बोल दिया, मेरे को पता है कि ये चलेगा. तो obviously I think there is a lot of process involved जहाँ पे there is a lot of back and forth. So how is that process? So see, recently we got one client, that inquiry came from Kolhapur.
he had just an idea. I mean, he already had running a business over there. तो उसको लगा कि मुझे ना कोल्हापुर चप्पल के स्टोर की फ्रेंचाइजी खोलनी है. मैंने बोला सर वेरी गुड आइडिया, इट हैज़ अ मार्केट. अभी तो आपने वो भी देखा होगा प्राडा वाला, so that is trending. So same thought he had कि भाई मैं स्टोर खोल दूंगा. Then I asked him, सर आपका खुद का स्टोर है कोई? तो बोलता है नहीं है. सर आपने स्टोर खोला नहीं है, आपको पता नहीं है उस स्टोर की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है. सो सर फर्स्ट स्टेप इज, अगर आपको चाहिए तो मैं गाइड कर सकता हूँ, आप पहला स्टोर करने के लिए हेल्प करूँगा. आप स्टोर खोलिए, 6 महीना उसको चलाइए. वंस इट इज़ प्रॉफिटेबल आप आइए. एंड आई सेड हिम अपफ्रंटली नो. सो ही फील ऑफेंडेड. देन नेक्स्ट डे अगेन ही कम बैक टू अस. क्योंकि मेरा दूसरा मॉडल है. माई करंट बिजनेस विच आई एम डूइंग सिंस लास्ट 10 years, दैट्स इनटू अ बिजनेस ऑफ लेबोरेटरीज. इट्स अ मेटलर्जिकल लेबोरेटरी. तो उसका फ्रेंचाइजी मॉड्यूल बना सकते हैं. मैंने बोला सर यस, इसका मैं आपको बना सके दे सकता हूँ. सो व्हेन यू से राइट कि भाई सर ये नहीं हो सकता है तो नहीं, सर आप किसी और के पास जाओ, इट्स ओके. बट यू हैव टू बी अपफ्रंट. इन एन एडवाइस आई कैन नॉट से दैट कि नहीं नहीं सर हो जाएगा, अच्छी अच्छी बातें सर आपको मैं 50 आउटलेट खोल के दे दूंगा. दैट नेवर वर्क्स. बिकॉज एज आई सेड, अगर मैं रॉन्ग फ्रेंचाइजी लूँगा, मैं किसी को रॉन्ग फ्रेंचाइजी दूंगा, देर इज ऑलवेज गोइंग टू बी डिवोर्स. तो 6 महीने के बाद ऐसे भी बंद ही होने वाला है. एंड दैट आफ्टर 6 months द पेन इज ह्यूज. तो वो मेरा टाइम, उसका टाइम, सबका टाइम जाएगा. तो बेटर से नो फ्रॉम अपफ्रंट, बेटर बी प्रिपेयर्ड. येस्टरडे ऑल्सो हैड अ मीटिंग. वो क्लाइंट को मैंने 6 महीने पहले ना बोला था. ही वॉज इनटू फूड इंडस्ट्री. सर आपका काठियावाड़ी फूड है सर, वो प्रोसेस के बिना आप स्केल ही नहीं कर पाओगे. अगेन ही केम बैक. ही सेड आई हैव हायर्ड अ कंसल्टेंट, हैव डेवलप्ड ऑल द फूड रेसिपीज नाउ, स्टैंडर्डाइज कर दिया है. अभी सर हम काम करेंगे. मैंने बोला सर अभी करेंगे हम लोग. सो यू हैव टू से इट व्हाट इज राइट. Whether it takes 3 months, 6 months or 9 months, it's okay. But let them come with a right and proper way. And 2025 में तो शायद हमारा रिकॉर्ड हो चुका है कि वी हैव ऑनबोर्डेड फ्यू क्लाइंट्स जिनको शायद 5 साल पहले, 7 साल पहले, 10 साल पहले वी सेड नो, बट दे वर इन टच विथ अस. और मे बी जो इनपुट्स वी शेयर्ड विद देम, they followed all those practices, they improved on those part, we were not aware, and they approached us के समीर भाई आपने जो बोला था ना, मैंने कहा भाई मेरी 50 प्रोडक्ट थी, नाउ वी हैव 200 प्रोडक्ट्स, नाउ कैन आई गो. मैंने बोला यस डेफिनेटली यू कैन गो ऑन फ्रेंचाइजी. योर बैक एंड वॉज नॉट रेडी, तो नाउ बोले आई हैव वर्क ऑन दिस एस्पेक्ट्स. सो फ्रॉम वेरियस कैटेगरीज, पुराने 5-10 साल पुराने क्लाइंट्स ऑन बोर्डेड, मल्टीपल क्लाइंट्स ऑन बोर्डेड दिस ईयर इट सेल्फ. सो विच वी रियली फील गुड कि नहीं, पीपल आर एक्चुअली टेकिंग दोज एडवाइजेज ऑन सीरियस नोट, उस पर इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और उसके बाद हमारे पास आ रहे हैं. Okay. आपको मैं एक आई एम जस्ट शेयरिंग वन थॉट. सो सी फ्रेंचाइजी बिजनेस है. इफ आई एम अ ब्रांड ओनर, यू कम टू अस, तो सबसे पहला पॉइंट, आप तो मुझे पैसे देने ही आए हो. ऐसा दुनिया में कौन सा आदमी होगा सोचिए जो पैसे के लिए ना बोलेगा. तो हर एक आदमी ले ही लेता है, राइट. सो दैट्स एक्चुअली अ प्रॉब्लम. आप इस पे आप ऐसे डीप थॉट डालेंगे तो आप तो मुझे पैसे देने ही आए, आपको तो ऐसा है कि नहीं इनका अच्छा चल रहा है, मैं पैसा दे रहा हूँ, सर आप मुझे दे दो. नाउ अगेन व्हाट यू थिंक, मैंने तो पैसा दे दिया है इनको, अभी सर आप चलना ही चाहिए. एंड सी व्हाट हैपेंस व्हेन वी थिंक, टेक अ वर्ड एज अ फ्रेंचाइजी, एंड इफ यू क्लोज द आइज, आपको सब बड़े ब्रांड्स ही दिखते हैं. एक नॉर्मल आदमी को भी लगता है मैं 10 लाख लगा दूंगा ना तो भी मैंने बहुत बड़ा ब्रांड लिया और दूसरे दिन से चलने ही वाला है. बट दैट नेवर हैपन्स इन अ लाइफ, बिकॉज ब्रांड ओनर का पहले से ही प्रोसेस सिस्टम्स है ही नहीं, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, तो आगे जाके यही होने वाला है. सो दैट्स व्हाई आई सेड franchisee seeker has to be aware and franchise brand owner also has to be aware. Then and there is a perfect match. We are a match maker. तो वो perfect match तभी बनता है जब both are compatible, otherwise it is going to fail. तो जैसे आपने बहुत सारे इंसाइट्स तो दिए कि प्रोसेस कैसा है आपका टू ग्रो, एंड आपने जैसे कहा कि यू हैव टू बी ओपन एंड क्लियर इन कम्युनिकेशन व्हेन यू आर टेलिंग इट टू अ ब्रांड. अब हो सकता है वंस दे स्टार्ट, दे एक्सपांड, दे ग्रो, उन्होंने 1 या 2 अपने फ्रेंचाइजी शॉप्स खोल लिए, बट मे बी द थर्ड वन इज नॉट गिविंग देम द आउटपुट दैट द फर्स्ट और द सेकेंड वन गिव. अब ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च दैट हैज गॉन इन एंड एवरीथिंग, इट इज गिविंग देम प्रॉफिट्स, बट उस लेवल का नहीं है. तो उस पॉइंट पे भी कहीं ना कहीं ब्रांड्स को लगता होगा ना कि हैव यू मेड अ मिस्टेक, इज समथिंग रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग देयर. तो क्या ऐसे भी सिनेरियोज होते हैं आपके इसमें? Yes, there are actually multiple cases which really happen कि when they go on franchisee, maybe with us or without us. तो
पहले 1-2 फ्रेंचाइजीज खोल लिए एंड देन फ्रॉम अ थर्ड or maybe many times even in those first 2 cases within after few months they start facing challenges. So again पहले जैसे दीनल ने बताया हम उसको रिवर्स में because we have practically faced all such situation in reality, तो हमने सारी चीज़ों पे रिवर्स करना करा कि what are the reason, ऐसा क्यों होता है, राइट. सो रीज़न कुछ 3-4 कॉमन रहते हैं कि बिकॉज एट द टाइम ऑफ सिलेक्टिंग द फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजी, पहली चीज़ तो आपने एक दूसरे से कम्युनिकेशन किया. व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन, शादी में करते हैं ना लड़का लड़की बातचीत करते हैं, तो वही चीज़ आपने करी कि आपकी एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस क्या है. तो देयर शुड नॉट बी अ गैप इन दी अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट एंड एक्सपेक्टेशन, टाइम कमिटमेंट. सेकंड कम्स इज अगेन द लोकेशन. इफ़ द लोकेशन इज़ वंडरफुल जहाँ हम अपने आप को इन्वॉल्वमेंट रखते भी हैं, दैट इज़ वाई, देन इट वुड मिनिमाइज, रेंटल्स आर राइट. And third important aspect is that is marketing. Ultimately तो business चाहिए, बाकी सब चीज़ें साइड पे रह जाती है. धंधा नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है, और बिजनेस है तो बाकी सारी चीज़ें मैनेजेबल है. दिस इज़ व्हाट वी कुड अंडरस्टूड. तो अगर फुटफॉल आपके आ रहे हैं, सही आ रहे हैं, और उसको आप मेंटेन कर पा रहे हैं, तो चीज़ें ट्रैक पे रह सकती हैं. 3-4 एस्पेक्ट ज़्यादातर केस में 80% या ज़्यादातर मोर देन 80% केस में अफेक्ट करते हैं. सो what process we have developed कि अगर वो client हमारे साथ जुड़ा है, वो transaction हमारे थ्रू हो रहा है, so both the party we try to educate both the part, whether it's a franchisor या तो franchisee seeker. हम उनको educate कर देते कि भैया ठीक है, आपने एक ब्रांड को समझ लिया, फाउंडर को समझ लिया, बट ये एज ए फ्रेंचाइज सीकर आपका रोल रहने वाला है. आपको प्रायोरिटीज फोकस रखना पड़ेगा, मार्केटिंग से लेके हर एक चीज़. लोकेशन, वी इन्वॉल्व आवर सेल्फ इन द सिलेक्शन ऑफ लोकेशंस, या उसको अप्रूव करवाने में ब्रांड ओनर का और हमारा इन्वॉल्वमेंट हम रखते ही रखते हैं. राइट लोकेशन विथ राइट रेंटल, क्योंकि वहीं पे फेलियर होने के चांसेस हो जाते हैं. और ब्रांड ओनर को भी हम एजुकेट करते हैं फॉर कीपिंग द राइट माइंडसेट. भैया ये आपका बच्चा है, ऐसा समझ लो, दिस इज गोइंग टू बी योर बेबी, या आप समझ लो कि यू आर गोइंग टू गेट मैरिड, वॉट एवर. वहाँ क्या क्या चीज़ें आप ध्यान में रखोगे. This is not a temporary relationship what you are going to develop. This is going to a lifelong relationship. Maybe that one franchisee can do 10 franchisees with you if he is happy, he is making money. Otherwise वो एक भी बंद हो जाएगा. What after first 2 franchisee gets close? उनको वो आईना हमको दिखाना पड़ता है, मिरर दिखाना पड़ता है कि पहले 2 आपके बंद हो गए तो सर भूल जाओ, फिर आपको कोई नहीं पूछेगा. So that reverse practice what we try to educate to both the parties. तो because जब से हमने वो सारी चीज़ें फॉलो करना स्टार्ट किए, एटलीस्ट इन आवर केस वो सारे प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो चुके हैं, एक्सेप्ट फ्यू ऑफ द केसेस जैसे पहले बताया कि पार्टनर्स में कुछ चैलेंज हुआ, या उसके गोल्स चेंज हो गए, सडनली उसको भाई कनाडा का वीज़ा पास हो गया, जाना है, समथिंग लाइक दैट. बाकी अदरवाइज इन आवर केसेस वो चीज़ें अभी नहीं हो रही है. मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ. वी हैव ब्रांड्स, अगर टचवुड ऐसा हो सब ड्यू डिलिजेंस के बाद, इट्स अ बिजनेस, तो हो सकता है अगर पहले से सब समझ के किया हुआ है, तो इफ बोथ द पार्टीज आर गुड, तो हम जितने हेल्प कर सकते. समटाइम्स हम उसको बोलते हैं सर ये लोकेशन शायद ऐसा है कि कुछ गड़बड़ आई है सिलेक्शन में, हम उसको दूसरी जगह मूव करते हैं. वॉट एवर द शिफ्टिंग कॉस्ट इज, ठीक है सर, अगर ब्रांड भी थोड़ा बेयर करेगा, और ये क्योंकि शिफ्टिंग कॉस्ट आर नॉट दैट ह्यूज, क्योंकि सब सेटअप है ही है, सिर्फ उसको लगा के मूव करना है. तो ऐसा भी हुआ है मेनी टाइम्स. हमने उसको काफ़ी चीज़ों में कैश फ्लो में हेल्प किया हुआ है. लाइक वी टेक लॉजिस्टिक सप्लाई से जो स्टॉक जाता है उसमें हम उसको सपोर्ट करें, सर अभी नहीं 3 महीने के बाद पेमेंट देना. फिर दूसरा चीज़ होता है सर अभी 4 स्टाफ की जगह 3 स्टाफ से आप चलाओ टेम्पररी, इफ़ रिक्वायर्ड सैटरडे संडे तो हम आपको एक स्टाफ भिजवा देंगे. तो ये सब चीज़ें वैल्यू एडिशन हम कर सकते हैं ब्रांड ओनर को समझा के, बिकॉज इफ़ दैट फ्रेंचाइजी इज़ हैप्पी. में इतना समझ, तो अगर उसके टफ टाइम में ब्रांड ओनर खड़ा रहा, वो जिंदगी में कभी बंद नहीं करेगा. सो दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स समबडी एक्सपेक्ट. ऐसा कुछ नहीं होता है कि हाँ, और ऐसा है कि वो अगर बहुत लॉस कर रहा है तो ही ये प्रॉब्लम है. अगर वो थोड़ा सा लॉस कर रहा है और हमने उसको बेसिक ब्रेक इवन पे भी ला दिया, तो ही अंडरस्टैंड्स दैट कि दिस इज अ राइट ब्रांड, उसके साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो दिस कैन बी इम्प्लीमेंटेड वेरी इजीली.
और ये करते भी हैं हम लोग, बहुत सारी ब्रांड के सामने किया हुआ है कि सर ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम करते, हम ब्रांड को बोलते हैं सर एक काम करो 10,000 मार्केटिंग आपसे ज़्यादा कर लो, पॉकेट से क्या ही जाएगा सर, चलने लगेगा तो सब आएगा। रॉयल्टी वेवर करवा सकते हैं हम लोग उनको, तो रॉयल्टी में भी काफ़ी, मैनेजमेंट फीस में भी वेवर किया हुआ है। सो दिस ऑल थिंग्स वी डू इट। Okay. You both have been mentioning one thing since the very start. It's a marriage between two people, right? And I'm sure जैसे in marriages, in relationships, बहुत सारे complications आते हैं and बहुत सारे miscommunications भी होते हैं. So has there been any incident where everything has gone right for the first 3-4 months, everything is working perfectly fine, but owner और franchisee seeker के बीच में कुछ conflict of interest हो गया, या franchisee seeker wanted to maybe do certain things in their manner but owner was against it and you had to get in between and solve it? ऐसा कोई incident particularly? ये तो मेजर केसेस होते हैं आज के टाइम पे, सो वी आर यूज टू इट। बट मैंने इसीलिए बोला कि सी नाउ देयर वी हैव टू अंडरस्टैंड कि गैप कहाँ पे हुआ है। मे बी देर इज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मे बी जो कमिटमेंट ब्रांड ओनर की तरफ से नहीं हुआ है तो ब्रांड ओनर इज रिस्पॉन्सिबल। एंड अगर फ्रेंचाइजी सीकर टाइम टू टाइम स्टोरी नहीं खोल रहा है, नई सप्लाई चेन देख रहा है, अच्छी प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है, एक्सपायरी माल बेच रहा है, देन द प्रॉब्लम इज ऑन द अदर साइड। सो वी ऑल्सो डू इज वी डू मिस्ट्री ऑडिट्स। जैसे मैं हर स्टोर पे जा सकता हूँ, आई हैव अ टीम ऑल्सो, किसी को भेज देते कि भाई ये क्या चल रहा है। समटाइम्स वी टॉक टू द ब्रांड ओनर्स कि कैसे चल रहा है सर, क्या चल रहे हो सर, अच्छा चल रहा है, कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो ही कीप्स टेलिंग अस। ठीक है, जैसे कल भी मुझे एक कॉल आया था, यार ये लॉजिस्टिक्स वाला इनका अच्छा नहीं, आप बात करो, वो क्यों अटक रहे, वो लॉजिस्टिक्स वाले से उनका कोई ऐसा टाई अप है कि वी कैन नॉट डू इट, कैन आई प्रोक्योर लोकली। तो ब्रांड ओनर से वो डायरेक्ट बात करेगा तो दे विल स्टार्ट फाइटिंग, यार आपको तो मेरे में गलतियां ही दिखती है। सो दे रूट अस। मैं बात करता हूँ तो उनको लगता है कि नहीं, इसका कंसर्न ये है कि आगे की फ्यूचर की फ्रेंचाइजी में ये प्रॉब्लम आए तो ये कैसे बेचेगा। सो दैट वे वी कैन ईजिली सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एंड बिलीव मी, ये बहुत छोटे प्रॉब्लम्स हो, वी जस्ट मेक इट बिगर। बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं कि जो नहीं दे रहा आदमी, अगर ब्रांड नेम चल रहा है, थोड़ा सेल्स कम है, तो मे बी दैट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल टू मैनेज इट आउट। आज तक ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया कि लड़ पड़े हैं। हाँ, वो अलग इश्यूज की कि जगह पे ही झगड़ा हो गया, या दोनों ने कुछ भी सिस्टम ही नहीं मैनेज किया, ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट हो गया कि लिखा ही कुछ है और दे ही कुछ रहा है, माल पहुंचाना था, आया नहीं, स्टॉक ही नहीं आया, तो दैट इज टोटल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। दैट इज फ्रॉम आवर साइड वी डू डिलिजेंस, इसलिए वो पॉसिबिलिटी नहीं आता। बट छोटे छोटे इश्यूज तो वी इजीली मैनेज इट नाउ, सो दैट्स डूएबल फ्रॉम आवर साइड वेरी इजीली। Okay. एंड अ कॉमन मैसेज टू एवरी ब्रांड ओनर्स एंड फ्रेंचाइजीज कि आपने एक बार शादी कर लिया, लोकेशन सही सिलेक्ट कर लिया, फिर एक ही चीज़ पे फोकस करो कि हाउ आई कैन गेट मैक्सिमम फुटफॉल टू माई लोकेशन विच वुड टर्न इनटू अ गुड अमाउंट ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस सही है, बाकी सारी चीज़ें बहुत ईजीली स्मूथली मैनेजेबल है। अगर बिजनेस नहीं है तो बाकी सारी 10 प्रॉब्लम आपको दिखाई देगी। मेक सेंस। एंड जैसे आपने मेंशन किया अबाउट फुटफॉल एंड एवरीथिंग, इसमें मार्केटिंग भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता होगा। 100%. सो व्हाट इज योर एंगल, लाइक हाउ डू यू गाइज मैनेज द मार्केटिंग? इज इट डन बाय यू गाइज या ब्रांड के होते हैं? डू यू ऑल्सो गिव इनपुट्स इनटू दैट? सो सी, मार्केटिंग यूजुअली सब ब्रांड ओनर के पास अपनी डिजिटल इन हाउस टीम होती है। बट सी, डिजिटल टीम आई डोंट से दे आर गुड और बैड, सब अच्छे ही है, बट दे आर मोर ऑफ अ ब्रांड पर्सपेक्टिव। हमारा सिर्फ सेल्स एंगल ज़्यादा रहता है, बिकॉज हमारे दिमाग में हमारा क्लाइंट फ्रेंचाइजी, उसका प्रॉफिट आए तो मैं सेल्स एंगल से ही सोचता रहता हूँ। सो आई विल टेक एग्जांपल, वी हैव अ ब्रांड फ्रॉम गांधीनगर, उसका सेल्स बहुत कम था। सो यू ऑलवेज टेल मी, तो मैंने बोला सर आप कैंपेन प्लान करते हैं सर, तो बोला कैसे कैंपेन करें? सर आप थोड़ा अवेयरनेस तो करो, वाई डोंट यू स्पेंड, और वो भी कुछ नहीं, सर 25,000 रुपये तो डाल सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? तो इन दिसंबर हमने क्या किया, ऐसे अच्छे से 2 बड़े सांता क्लॉज लिए, रास्ते पे घुमाए और उनके बैग में बहुत सारे कूपन्स डाल दिए। सो दे वेंट टू कॉलेजेस और ऐसे ही गिफ्ट फ्रॉम सांता, गिफ्ट फ्रॉम सांता। बिलीव मी, दैट सेल इंक्रीजेस टू 3x नाउ। वैसे छोटे छोटे कैंपेन्स होते हैं, राइट? सो वेयर ब्रांड ओनर हैज टू थिंक सेल्स ड्रिवन कैंपेन अलग चीज होता है। सो इट हैज टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। दूसरा एक एग्जांपल हम एक ब्रांड पे इंप्लीमेंट करें, लाइक व्हाट वी स्टार्टेड अ ऑनलाइन कैंपेन। मैंने बोला सर ये आइडिया है, आप क्या करो कि सर आप सिर्फ बर्थडे का गिफ्ट डाल दो। सो इफ यू हैव अ बर्थडे इन जनवरी, फरवरी, मार्च, सिर्फ रजिस्टर कर लो, वी विल हैव अ लकी ड्रॉ। हमारी तरफ से आपको एक बर्गर, हमारे यहाँ से आपको फ्रेंच फ्राइज, एवरीथिंग वी विल सेंड इट टू एज अ गिफ्ट और यू कलेक्ट एट आवर स्टोर एंड डू इट। अभी क्या हुआ, हमारे पास लाइव डेटा आ रहा है,
यानी हर महीने की जिसकी बर्थडे है हमारे पास डेटा आना शुरू हो गया. मैं हैम्पर तो किसी एक को ही दे रहा हूँ, बट दोज लाइव डेटा आई कैन टारगेट इट. सो ये सब चीजें छोटी छोटी होती है वेयर वी कैन ऐड वैल्यू. तो वो लोकलाइज भी हो सकता है. When it can be central level also, तो वो भी कर सकते हैं. समटाइम्स वी कैन डू कॉम्बो ऑफ 2 ब्रांड्स की मेरे पास कपड़े वाली ब्रांड है और फूड वाली ब्रांड है, तो हम उसको क्रॉस भी करवा सकते हैं. सो दीज आर द कैंपेन्स वी एडवाइज टू आवर क्लाइंट्स, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्टिव है, वी आर फोकसिंग ऑन अ सेल्स एंड वी आर अ सेल्स कंपनी ओनली. तो अगर सेल्स होगा राइट एंड वी से वी आर अ स्ट्रेटेजी प्लस सेल्स, तो स्ट्रेटेजी देते हैं और सेल्स लाना है, बाकी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसके अंदर. So these are the things where we have worked out and this has given a positive result to many brand owners. जो मैंने आपको बोला था फ्रेंचाइजी लॉन्च प्लान, तो this month only, last month we opened one brand called Dos Bros. It's a US based brand. हमने सूरत में ओपन किया. Believe me, we already have a launch plan. हमने पहले से ही उसका लॉन्च प्लान ऐसा रखा हुआ है that first month it reach around 18.5 lakhs of sales. तो पहले वीक से ही, तो पहले हमने ऑफर लाना चालू किया, फिर धीरे धीरे ऑफर कम करते गए, देन वी स्टार्टेड एंगेजिंग मोर, फिर ऑफ आवर्स में उसको कैसे पिकअप करें, ये सब सॉल्व किया. तो फर्स्ट मंथ ओनली ही हैज रीच अराउंड 18.5 lakhs ऑफ सेल्स. तो फ्रेंचाइजी ओनर इज ऑल्सो हैप्पी, ब्रांड ओनर इज ऑल्सो हैप्पी. जस्ट पॉइंट इज कि उसको वो डायरेक्शन देना था कि सर सेल्स पे ध्यान देते हैं, बाकी सब आपका अच्छा ही है. तो ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, बट वी कैन ऐड वैल्यू दैट वे. अंडरस्टूड. आपने जैसे क्रॉस कोलैबोरेशन मेंशन किया, सो डू ब्रांड ओनर्स एक्टिव, बिकॉज आज के तारीख में ऑनलाइन इतने आप ब्रांड कैंपेन्स देखते हो विच इज़ लाइक अ क्रॉस कोलैबोरेशन बिटवीन 2 डिफरेंट ब्रांड्स, एंड ज़रूरी भी नहीं कि जॉनर बहुत सेम हो, कहीं से भी कोई भी ब्रांड क्रॉस कोलैब करते. तो डू ब्रांड्स ऑल्सो एक्टिवली अप्रोच कि अरे मेरे को इस ब्रांड के साथ क्रॉस कोलैब करना है, पॉसिबल है क्या? दैट्स बेनिफिट फॉर देम. यानी आज मेरे पास है कि अगर कोई डेयरी स्वीट का ब्रांड है और उसको मोबाइल वाले से कनेक्ट करना है, तो बोथ गो हैंड टू हैंड. सो देयर आर मेनी ऑप्शंस. तो हमारे पास तो इतना बड़ा ब्रांड का पोर्टफोलियो है, सो वी encourage this. तो ये तो होना ही चाहिए. That's where both the businesses are growing. Ultimately our objective is profitability and they have taken a franchise only for profitability. तो बात ही profitability की करनी पड़ेगी हमको हर टाइम. मेक सेंस. आपने जैसे अपने प्रीवियस आंसर में ये भी मेंशन किया था कि एक यूएस बेस्ड ब्रांड है जो आपने सूरत में स्टार्ट किया. आर देयर ऑल्सो ब्रांड्स फ्रॉम इंडिया दैट आर एक्सपांडिंग ग्लोबली? ऐसे आपको मैं बोलूँ कि इंडियंस आर नाउ अक्रॉस द ग्लोब. मोस्ट प्रीमियम सेक्टर वी से इज फूड. इंडिया का फूड बाहर बहुत डिमांड में है एंड आई बिलीव मी देयर इज अ ह्यूज स्कोप फॉर इंडियन ब्रांड्स अब्रॉड नाउ. सो सबसे पहले तो ये कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव सीन रिटेल ब्रांड्स फ्रॉम आउटसाइड टू इंडिया, टेक्नोलॉजी ब्रांड्स आती है, बट फूड ब्रांड का स्कोप वहाँ पे यहाँ से वहाँ ज़्यादा बहुत है. ठीक है, सो वी टेल यस. सेकेंड थिंग, वी हैव वन ब्रांड जो फूड ट्रक पे था, वी हेल्प देम आउट. बिलीव मी, वो स्टोरी भी ऐसा था कि ड्यूरिंग कोविड टाइम्स उनको किसी फैमिली फ्रेंड से कनाडा का डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी मिल गया. दे वेंट देयर. ब्रांड ओनर हैव नेवर बीन टू कनाडा. वो वहाँ गए, फिर उन्होंने पूछा यार यहाँ पे फ्रेंचाइजी फीस क्या चलती है, कैसे करेंगे. मैंने बोला आप $25,000 फ्रेंचाइजी फी इजीली कोट कर सकते हो. दे वर लाइक सरप्राइज, $25,000. मैं तो हाँ देते हैं. यूएस इज अ वेरी कॉमन और कनाडा इज अ वेरी कॉमन मार्केट वेयर यू कैन चार्ज $25,000 एंड दैट्स वेयर नॉर्मल इज, क्योंकि वहाँ एक नॉर्मल फ्रेंचाइजी खोलने में ही $4-5 लाख चला जाता है. फॉर अस इट इज लाइक करोड्स, बट देयर इट इज अ नॉर्मल फिगर. जैसे यहाँ 50 लाख लगता है, वहाँ पे $5 लाख लगता है. दैट ब्रांड ओपन 4 stores in Canada. They open 1 store in USA, another are also opening, and believe me, their US stores does $1 lakh per month. So that's the demand of the food, Indian food globally. So ऐसी बहुत ये stories ऐसी है कि means it can scale very faster, right? So I'll always say if you are a good brand, structured brand, there is a huge scope abroad. And just to add that brand is serving pure veg and vegan and Jain food over there. Oh, okay. Where all are serving pure non-vegetarian food. तो लोग 100 किलोमीटर दूर से आते हैं स्पेशली बिकॉज ऑफ दैट पार्ट. ऑल्सो जैसे टेस्ट बर्ड्स में काफ़ी डिफरेंस है इंडियन और वेस्टर्न. इसमें डज द फ्रेंचाइजी और द ब्रांड चेंज इट अकॉर्डिंगली या टेस्ट इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट? बिकॉज व्हेन इट कम्स टू बिग फूड ब्रांड्स विच हैव come from the US to India, there is a certain standard of taste that you find across all the franchisee around. तो क्या ये वहाँ पे भी फॉलो होता है या डू वी केटर टू ऑडियंस डिफरेंटली? See, technically, if a foreign brand comes to India, yes, they have to work on the taste because we have a different taste and India is a different country at every 50 kilometer. But when it comes to Indian brand to going there, they want Indian food.
सो वो उल्टा है, अगर हम स्पाइसी बेचेंगे उनको स्पाइसी ही खाना है, अगर हम वेज वीगन दे रहे हैं तो उनको वही चाहिए. सो दे एनकरेज एंड दे वांट इंडियन फूड. तो वहाँ पे इतना चेंज करने की जरूरत नहीं है. हाँ, व्हाट दे वांट इज दे लुक फॉर मोर ऑफ अ हाइजीन प्रोसेसेस. दे वांट कि ये मैकडोनल्ड जैसा मेरा प्रोसेस है. दे अप्रिशिएट दैट. उनको यही चाहिए, फूड तो उनको इंडियन ही चाहिए वहाँ पे. अंडरस्टूड. एंड ऑल्सो जैसे यू गाइज हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, आई एम श्योर कि आपने बहुत सारे स्मॉल ब्रांड्स को बड़ा होता हुआ भी देखा है in terms of expanding, growing the team size from maybe a small gala shop to a big pura showroom type shop. So are there any success stories that you would like to bring to the limelight so that even people are more interested into this? क्योंकि जैसे स्टार्ट में मैंने बोला था कि देर आर मैनी पीपल हु ऑल्सो थिंक कि मैं खुद से अपना कुछ स्टार्ट करूँगा, इट हैज़ टू बी माइन, एंड वो शायद फ्रेंचाइजी एंगल में कभी सोचते ही नहीं है. बट दिस स्टोरीज विल हेल्प देम अंडरस्टैंड कि नहीं, मे बी आई कैन नाउ एक्सपांड, मे बी आई थिंक कि दिस इज़ द राइट टाइम, अब तो मैं बढ़ सकता हूँ आगे. एनी सक्सेस स्टोरीज दैट audience would also relate to? So I'll tell you one thing. See, we had one brand. It's a big brand only, but they are a pure manufacturer. So Euro Foods karke, it's in Surat. It's listed on stock market also. So it's a very good brand. They are having all namkeens, frozen food, and so they started. They are more often into manufacturing. तभी उनको रिटेल में आना था. So what happened? Retail is very different angle into it, right? So पहले तो फ्रेंचाइजी मॉडल समझना, फिर रिटेल को डेवलप करना is very different thought process. We started working on this assignment since last 1 year, and what success we have got is today they are opening around 10 stores now. Means Saurashtra we have cracked down, Surat we have cracked down. They are opening more 50-100 stores this year itself. लेकिन वो ब्रांड रिटेल प्रेजेंस से इतना बड़ा बन जाता है कि बिकॉज रिटेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो टू बी इन अ मार्केट, आप बोर्ड देख के उसकी रिकॉल वैल्यू ज़्यादा करते हो इंस्टेड ऑफ यू सीइंग इट. और आप जितने भी ब्रांड्स देखोगे ऑनलाइन, दे हैव टू कम ऑफलाइन. आप कोई भी ब्रांड का नाम ले लो, ऑनलाइन होगी, उसको आना ही पड़ा होगा. फर्स्ट क्राई, लेंसकार्ट, यू नेम एनी ब्रांड, दे हैव टू हैव ऑन ऑफलाइन स्टोर्स, बिकॉज ऑफलाइन इज व्हाट गिव्स यू ट्रस्ट. तो ऐसे दिस ब्रांड, even though a bigger brand, but they have multiple retail outlets now. ये भी है. देर एक दूसरा ब्रांड है हमारे पास, वो सिर्फ पफ बेचता है. ही इज फ्रॉम स्मॉलर सिटी ऑफ गुजरात, बहुत छोटा है, बट है एम्बिशियस बंदा है, अच्छा पफ बेचता है. द मॉडल इज ऑल्सो 4 लाख रुपीज. तो छोटा किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है 4-5 लाख वो कर सकता है. सो प्रोबेबली इन लास्ट 6 months वी हैव फाइनलाइज अराउंड 20 फ्रेंचाइजीज फॉर देम, क्योंकि 4 लाख का ऑडियंस भी बड़ा है और सबको धंधा करना है. सो दैट वर्क्स वेरी वेल. तो ऐसे छोटे छोटे मॉडल्स भी होते हैं, एंड दोज मॉडल्स आर वेरी हाईली प्रॉफिटेबल ऑल्सो, क्योंकि छोटा इन्वेस्टमेंट, जगह छोटी ले ली, कहीं पे भी स्टार्ट कर लिया, और प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा आती है. सो पीपल, एनीबडी कैन एंटर इनटू विद दिस काइंड ऑफ बजट. सो वी क्रिएटेड दैट. ऐसा नहीं कि हमारे पास जो ब्रांड्स है वो करोड़ वाले ही होते. फ्रेंचाइजी कैन बी स्टार्ट्स फ्रॉम 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपीज ऑल्सो. और अगर राइट लोकेशन है या छोटा टाउन प्लेस है तो वहां पे वो प्रॉफिटेबिलिटी आती ही आती है. एंड बिजनेस इज मोर शिफ्टिंग फ्रॉम इंडिया टू भारत नाउ, क्योंकि टीयर, जैसे मैंने पहले बताया, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ आर ग्रोइंग. लोगों के पास वहाँ पे पैसा भी है, सफिशिएंट मनी है, हैबिट्स आर चेंजिंग, दे आर इन्फ्लुएंस. सेम वे छोटी छोटी ब्रांड्स हैं, क्योंकि वी कम फ्रॉम दोज काउंट ऑफ टाउन, तो हम भी चाहते हैं कि वैसे ब्रांड ग्रो करें. देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स जो इवॉल्व हो रहे हैं, एंड बिलीव मी, शायद मुंबई या बड़े सिटी से कोई ब्रांड कर रहा है तो ईजिली वो जब बड़ा नहीं होगा तब तक इन्फ्लुएंस नहीं करेगा. बट अ ब्रांड मे बी 15 आउटलेट कर रहा है, 25 आउटलेट कर रहा है, मे बी फ्रॉम अ टीयर 3 सिटी, दे इन्फ्लुएंस लाइक एनीथिंग टू मल्टीपल पीपल ऑफ दैट टाउन और नियर बाई सिटीज़ कि मैं भी कर सकता हूँ बहुत. सो इट हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट कि एंटरप्रेन्योरशिप का जो कीड़ा है ना, वो जल्दी उसमें से होता है. सो दिस इज़ द टाइम वी ऑलवेज से कि अभी टीयर 2, टीयर 3, 4 सिटीज़ से ब्रांड इवॉल्व होनी चाहिए. बड़ी ब्रांड्स ऑलरेडी कर रही है, अच्छा कर रही है, बट दिस इज़ देयर टाइम जहाँ पे वो सिटी के लोग भी उनसे ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं, एंड दे कैन स्टार्ट देयर फ्रेंचाइजीज. Understood. I have one very silly and random question. So जैसे टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ में ना कुछ चीज़ होगी जो सिर्फ वहाँ की स्पेशलिटी है. मे इट बी फॉर टेक्सटाइल, मे इट बी फॉर फूड. एंड ना बहुत लोगों जो लाइक आई ऑल्सो हैव अ फ्यू फ्रेंड्स जो टीयर 2 सिटी से मुंबई मूव हुए,
एंड उनको वो होता है ना कि यार घर का ना ये चीज वहाँ का मैं मिस कर रहा हूँ, या अगर तुम वहाँ जाओगे तो ये चीज तो जरूर ट्राई करना. सो डू यू गाइज ऑल्सो टैप इनटू सच ब्रांड्स जहाँ पे यू आर लाइक कि ठीक है इसको हम ग्रो करना चाहिए हमें, ताकि और लोगों को भी पता चले? See, it's very difficult. It's a right question, but it's very difficult to break the local taste. मैं आपको समझाता हूँ. जैसे मिसल. So misal, basically it's a Maharashtrian product. You cannot go across India with this misal. हाँ जा सकते हैं, but the percentage is very less. तो जो sales numbers लाना पड़ेगा वो बैठेगा ही नहीं आपका. So better you be a leader in your area. You have an thought process तो कर सकते हैं. जैसे आप आज भी देखोगे तो वड़ा पाव जो मुंबई में मिलता है वो गुजरात का अलग ही है, और कितनी ब्रांड्स होगी जो मुंबई में बहुत सारा बेचती है. गुजरात हैज़ अ वेरी लिमिटेड माइंडसेट. वो मार्केट होता ही नहीं, और बनाते बनाते आप लोग थक जाते, सब ब्रांड्स थक जाती है. सो बेटर व्हाट वी डू इज लाइक, हमारे पास ऐसी ब्रांड है फ्रॉम बड़ौदा, इट इज कॉल्ड टीजी गांठिया. तो वो गांठिया फाफड़ा बेचता है. नाउ वी हैव इंक्वायरी फ्रॉम मुंबई मे बी, बट वो उसका लिमिटेशंस है क्योंकि मैन पावर भी नहीं दे पाएगा. एंड इट्स बेटर वर्क्स इन दैट जोन एंड दैट जनरेट्स मोर बिजनेस. हाँ शायद वो मुंबई में चलेगा लेकिन पुणे या बैंगलोर जाके वो फेल हो जाएगा. सो वी शुड नेवर थिंक ऑफ दैट एट दिस स्टेज. बट यस, हम जब भी हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं, आई ऑलवेज से लेट्स बी अ मार्केट लीडर इन योर एरिया. मार्केट शेयर कैप्चर कर लो. अभी आप 100 आउटलेट का पोटेंशियल इंडिया में क्यों करते हो सर? गुजरात में 100 का है तो 100 गुजरात में ही करो. अगर महाराष्ट्र में 100 का है तो महाराष्ट्र में ही 100 करो ना. क्यों जाना है आपको बैंगलोर? आप सिर्फ मैप पे दिखाओगे आई हैव 20 आउटलेट्स अक्रॉस इंडिया, एंड इफ आई से आई हैव 20 आउटलेट्स इन गुजरात, दिस इज मोर बेटर आइडियोलॉजी टू रन अ प्रॉफिटेबल बिजनेस. बिकॉज वहाँ पे आपका कॉस्ट बढ़ेगा, लॉजिस्टिक्स बढ़ेगा. एक स्टोर का मार्केटिंग का बॉम्बे का कॉस्ट हाई है, 25 स्टोर का मार्केटिंग का कॉस्ट कम होता है. सो बेटर टू बी वेरी 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 स्पेसिफिकली फोकस ऑन द मार्केट लीडरशिप. दैट्स हाउ यू बिकम अ ब्रांड. आप कोई भी बड़ी ब्रांड देखोगे वो पूरा एरिया कैप्चर कर लेता है. सो वी ऑलवेज से लेट्स बी ऑन अ मार्केट शेयर मॉडल. ऐसा मत सोचो कि मैं पैन इंडिया ब्रांड हूँ. आई थिंक दैट इज द राइट स्ट्रेटेजी फॉर एनी ब्रांड ओनर. एक एग्जांपल मैं शेयर करूंगा, अ रिवर्स एग्जांपल. अ ब्रांड आई न्यू, दे वर गुड फाउंडर्स, said I have 50 outlets, and they really have 50 outlets but into 40 cities. So किसी भी जगह पे आपका ब्रांड रिकॉल वैल्यू ही नहीं है. जबकि वही एक सिटी में बोलते हैं कि आई हैव 10 आउटलेट्स, देन एटलीस्ट वो टेरिटरी के हर बंदा आपको जानता है. सो मेकिंग नो सेंस, क्योंकि एक भी सिटी में आपकी ब्रांड अनलेस एंड वो 1 किलोमीटर में शायद आपको लोग जानते हैं. सो अभी वो इवॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, और काफ़ी हद तक वो आउटलेट्स आर गेटिंग क्लोज ऑल्सो. प्लस मैनेजिंग लॉजिस्टिक, आपको रॉ मटेरियल हर जगह पे भेजना, इट्स नॉट ईजी. मतलब दे आर फ्रॉम सेंट्रल इंडिया, तो वहाँ से पूरे इंडिया में एक आउटलेट के लॉजिस्टिक कॉस्ट आप देख लो. सो बहुत सारे फैक्टर. वी ऑलवेज से गो स्ट्रेटेजिकली. आप अपना ब्रांड पोजिशनिंग, ब्रांड डिमांड को समझो, अकॉर्डिंगली आप एक्सपैंड करो. वैसे बहुत सारी कैटेगरीज लोकल हैं, जैसे अभी चाट कैटेगरी, सो अभी दैट इज ऑल्सो इवॉल्विंग. बट येस, अभी एक रिसेंट हमारे ब्रांड है जो चाट कैटेगरी है, दे हैव रिसेंटली स्टार्टेड अंडर आवर कंप्लीट कंसल्टेशन इनटू कनाडा. ओके. तो वी कंप्लीटली गिव देम कंसल्टेशन फॉर कनाडा. बट उसके लिए बैकएंड में बहुत सारी टेक्नोलॉजी एडॉप्शन करना पड़ा ताकि यहाँ से वो सप्लाई हो सके और सिमिलर टेस्ट मिल सके. सो इट टुक ऑलमोस्ट 6 months डाउन द लाइन चीज़ों को सेट करने में. तो येस, इट कुड हैपन, बट उसके लिए बहुत सारी बैकएंड चाहिए. बट उनका बेस यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है. दे हैव 10+ सक्सेसफुल आउटलेट्स सिंस लास्ट 20 years. सो दैट ब्रांड रिकॉल वैल्यू इज देयर. कि अभी अहमदाबाद में भी खुला है तो लोग आ रहे हैं कि नहीं, वी नो, तो 25 किलोमीटर से लोग आ रहे हैं खाने के लिए. यस, ट्रू. ये तो मैंने बहुत देखा है. जैसे देयर आर वेरी फेमस फूड्स ऑफ गुजरात ऑल्सो. पीपल फ्रॉम मुंबई ट्रैवल देयर, एक रात में जाके खा के सुबह वापस आ जाएंगे. बट हाँ, आई अग्री टू दिस. ऑल्सो आई फील स्मॉल बिजनेसेस ग्रो करने का एट सम स्टेज, यू नो कि ठीक है ये पॉइंट पे वी हैव टू ग्रो, वी कैन एक्सपांड, ये लोकेशंस है. But there are a lot of big brands also which have gone into franchisee model, which are doing great, but then suddenly you don't see them expanding more. या तो वो उनका कैप आ जाता है वहाँ पे, या their downfall also might start. Like, has there been any situation, and if yes, how do you guys tackle those? क्योंकि obviously advice है तो वो आपके पास ही भाग के पहले आएंगे कि क्या करें हम. See, if you see classic example for any product, तो लाइफ साइकिल 3 साल होता है, फिर वो मार्केट चेंज होता है. सो मे बी दैट ब्रांड इज नॉट
pivoting with the time. So Hmm. he needs to add more products in that. ठीक है, अगर वो नहीं करेगा सेल्स नहीं आएगा. ठीक है, मे बी ही स्टार्टेड फ्रॉम मुंबई. आप यहाँ पे बैठे आपने भी देखा बहुत सारे ब्रांड्स हैं बट दे स्टार्टेड फॉलोइंग, क्योंकि वो एक ट्रेंड होता है. वॉफल वॉज अ ट्रेंड, आई कैन से दैट. ओके, शेक्स वॉज अ ट्रेंड. नाउ इफ यू डोंट ऐड मोर वैल्यू टू द शेक्स, वो धीरे 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 एक्सपांशन नहीं कर पाते हैं, राइट. So they have to think and they have to evolve. So every 3 years we change this evolution in every food category, every education category, every retail also as a category. आपको नया नया लाना ही पड़ेगा. Even if you go for any multinational brand also, they keep adding every quarter, every month new product into this. तभी जाके आपको आता है कि भाई हम जाए वहाँ पे. So the downfall is because they have become stagnant कि नहीं भाई अपना चल रहा है ना, चलने दो. फिर वो चलता नहीं है. पीपल विल स्टार्ट शिफ्टिंग फ्रॉम दैट ब्रांड टू अदर ब्रांड विच इज इवॉल्विंग. ओके, ठीक है. ऑल्सो जैसे आपने मेंशन किया कि दिस इज अ रिलेशनशिप दैट यू गाइज बिल्ड, तो आज की तारीख में देर इज अ टर्म कॉल्ड रेड फ्लैग. आई गेस बोथ ऑफ यू वुड बी अवेयर ऑफ दैट. सो आर देयर एनी रेड फ्लैग्स इन बोथ? क्लाइंट्स के थ्रू भी क्या रेड फ्लैग्स हो सकता है, एंड ऑल्सो फ्रॉम अ ब्रांड परस्पेक्टिव व्हाट आर द रेड फ्लैग्स दैट यू गाइज सी? सी नाउ मैं आपको एक लाइव एग्जांपल, इफ यू गो टू बाय अ मोबाइल, ओके, तो मैं आपको ये मोबाइल दिखाऊंगा कि दिस इज अ मोबाइल फोन विच इज ऑफ 1 लाख रुपी, बट इट हैज नो ब्रांड नेम, बट इट हैज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फीचर. यू कंपेयर विथ नेम एनी ब्रांड, यू कैन से iPhone, Samsung, but will you buy that mobile? Maybe no. Not. Same way if you go to buy a car, okay, तो आप कार देखने जाओगे तो पहला सवाल क्या पूछोगे कि भाई माइलेज क्या देती है, सर्विस सेंटर है कि नहीं, राइट. वेदर दैट इज इजी गोइंग, वो सब आप चेक करोगे. एसेसरीज क्या है. सेम वे व्हेन यू गो फॉर गेटिंग अ मैरिज, तो मैरिज में भी क्या होता है, वी चेक कि भाई what is a character, family background क्या है, what is he earning, whether he wants to settle down abroad, India क्या, whether the match is there. But what happens in a franchisee business, जब हमारे पास कोई भी आता है ना, पहला सवाल पूछता है ROI, it is return on investment, right? But आप एक 10,000 का मोबाइल या कार या लाइफ सेट कर रहे हो, तो यू चेक all these points. Then why don't we check all these things? So the reflex what you are talking is that it is very, very important to have all these aspects covered whenever you are taking a franchisee. So from the starting, when we started our conversion, it is important to know each and everything, and then you take a call. So it is 100% profitable, that is for sure. If there is anything hidden, तो वो as an insider, our name itself is franchise insider, so we know whenever we onboard a brand, even we check the sales figures of that store of last 6 months. So I know whether that brand owner is making money or making a loss. So that also helps us कि सर ये परफेक्ट है आपके लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है और ये चलेगा ही चलेगा आपकी जगह पे. So that is what we can do it. ओके, अंडरस्टूड. ऑल्सो जैसे आप ने अभी जस्ट मेंशन किया कि यू ऑल्सो गो थ्रू द 6 months ऑफ सेल्स दैट दे हैव डन. ये जस्ट वन रैंडम क्वेश्चन दैट पॉप्ड अप इज, जैसे शार्क टैंक स्टार्टेड, a lot of people go pitch their businesses there, and after a point even they started mentioning कि कभी कभार ऑन शो जब आके वो चीज़ें बोलते हैं एंड जब वो अपना रिसर्च बैक एंड से करने जाते, नंबर्स डोंट मैच. सो डू यू गाइज ऑल्सो फेस दिस ट्रबल, या पीपल आर वेरी ट्रांसपेरेंट विद देयर बिजनेस? हमारे यहाँ उल्टा है. इफ ही विल हाइड समथिंग, वी आर अ डॉक्टर, सो अल्टीमेटली लॉस इज टू हिम. क्योंकि अगर उसको 50 फ्रेंचाइजी खुलनी है, हाइड किया होगा, तो ये पहले ही मीटिंग में पता चल जाएगा जब फ्रेंचाइजी लेने आएगा. सो दैट्स वेयर हिज लॉस इज हायर. सो मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रांड ओनर डोंट हाइड दिस थिंग. सेकेंड थिंग, कुछ चीज़ें इवेंचुअली विद द एक्सपीरियंस, इफ यू आई गो टू एनी रेस्टोरेंट, आई सिट फॉर 1 hour ऑल्सो, आई कैन से दिस आर द सेल्स नंबर्स, ही कैन डू इट, बिकॉज आई नो एवरेज बिल कॉस्ट, आई कैन सी व्हाट नंबर ऑफ पीपल आर देइंग. मुझे फूड कॉस्ट भी मालूम है उसका क्या है, तो मैं वहीं बैठ के उसका P&L निकाल के दे सकता हूँ. सो दैट इज ऑल्सो वेरी ईजी फॉर अस. एनी रिटेल स्टोर ऑल्सो वी नो, बिकॉज टेक्निकली आई नो मार्जिन्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द बिजनेसेस. तो बहुत ईजी है अभी के स्टेज पे कि आई गो देयर, आई सिट देयर एंड वी एनालाइज इट, इट्स डन. सो वो प्रॉब्लम है. यू आर सेइंग इट एट देयर मेनी टाइम पीपल ट्राई टू हाइड इट, बट इट्स देयर लॉस एज अ ब्रांड ओनर, नॉट आर्स. सो वो आज नहीं तो कल हमको पता चल ही जाएगा. ड्यूरिंग आर डिस्कशंस, ड्यूरिंग आर फ्रेंचाइजी मॉड्यूल डेवलपमेंट, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हो गए जो मैं पूछूंगा, सर आपने क्या किया, ये प्रोडक्ट का मार्जिन क्या है, सर अभी का सेल्स फिगर्स
क्या है, तो ये सब चीज़ें हमको तो पता चल ही जाएगी. सो व्हाट ऑल्सो वी विल डू इट, ओके सर वी विल मेक इट, बट वी विल ऑल्सो स्टार्ट थिंकिंग वेदर वी शुड प्रपोज इट टू फ्रेंचाइजी सीकर और नॉट. अंडरस्टूड. और वो थ्रेट वाले एस्पेक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस बाय डिफॉल्ट वी एजुकेट दैस कि मॉडल जब हम क्रिएट करते हैं एलिजिबिलिटी स्टेज पे अगर वो आ रहा है देन वी ओनली ऑन बोर्ड द क्लाइंट. देन देर इज़ अ स्ट्रेटेजिक मीटिंग जो इनिशियल स्टेज पे फाउंडर से होती है, तो वहीं पे वो डीप डाउन डिस्कशन हो ही जाता है. तो वो थ्रेट एस्पेक्ट हम पहले बता देते हैं कि इफ़ यू फील ये चीज़ आप नहीं करेंगे तो सर 1-2 शायद कर लोगे फिर आगे नहीं होगा. एंड वंस इट इज़ क्लोज यू विल नॉट बी एबल टू रीस्टार्ट इट अगेन बिकॉज आपका पहला ही शटर डाउन हुआ है. डू यू थिंक कोई पूछ आपको, बिकॉज पीपल आर स्मार्ट नाउ डेज, दे बेसिक ड्यू डिलिजेंस होता है, वो पूछते हैं सर आपकी फ्रेंचाइजी तो ठीक है मैंने ऐड देखा, डू हैव योर ओन आउटलेट्स, आपकी फ्रेंचाइजी है सर उसका नंबर दो. दे आस्क ब्लंटली विच आई अप्रिशिएट, वो होना ही चाहिए. और अगर आप नहीं दोगे तो वो गोल से ढूंढ के वो आउटलेट पे चला जाएगा, पूछेगा सर रमेश भाई कैसा चल रहा है धंधा, बद्दू ठीक है बट आ प्रॉब्लम्स. तो जहाँ वो प्रॉब्लम सुन लिया ही इज नॉट गोइंग टू टेक योर फ्रेंचाइजी. वो एग्जाम्पल के साथ हम उनको एजुकेट कि सर ऐसा होगा, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी कैन हेल्प यू, हम आपके सारथी बनेंगे, आपको बताएंगे, बट वो मैनेज आपको करना है, उसका प्रॉफिटेबिलिटी यू नीड टू टेक केयर, तभी जाके आगे बढ़ेगा. Okay, understood. I would also like to understand from both of you, जैसे this business takes complete time of yours and आज के तारीख में Gen Zs are more on to कि नहीं we need थोड़ा personal life balance भी. I am sure आप लोग को बहुत टाइम ऐसा होता होगा कि आप पर्सनल लाइफ में टाइम नहीं दे सकते, तो any way, because I am sure a lot of business owners would be watching this and trying to figure out कि हम कैसे manage करेंगे. How do you both manage your personal life and your work life? Because research के लिए I think पूरा दिन भी जाता है आपका. So how do you balance? I know most of the days it's not possible, but then if you do, how do you do it? So see, our company basically it's a system driven. We have our own ERP in place. We have 5 days week culture. We have 10 to 6. So our team is very happy with all these things. As far as our concern, मैंने एक चीज़ सीखी है, आपको है ना जॉब है ना बिजनेस की तरह करना चाहिए और बिजनेस को जॉब की तरह करना चाहिए, राइट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैं बिजनेस को जॉब की तरह करने सोचूंगा तो मैं प्लानिंग रिवर्स, मुझे 10 से 6 ही काम करना है. सो नाउ आई हैव टू डेवलप माई रिवर्स सिस्टम कि टीम आएगी जाएगी तो भी प्रॉब्लम नहीं, सिस्टम ही काम करती रहेगी. सो दैट्स वे यू कैन सेव टाइम. सो इट इज़ एज अ फाउंडर और एज अ को फाउंडर और एज अ टीम इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव अ वर्क लाइफ बैलेंस. यस, ऐसा है कि वी आर लाइक एन एम्बुलेंस 24/7. कोई फ़ोन आता है तो आई डोंट से नो टू इट, वी आंसर द कॉल्स, बट ऐसा नहीं है कि मुझे कहीं पे भागना पड़ता है, बिकॉज वी आर नॉट एन इमरजेंसी बिजनेस. ओके, वी आर मोर ऑफ अ स्ट्रेटेजिक बिजनेस. सो वी मैनेज इट वेरी वेल नाउ. एनीथिंग इज प्रोसेस ड्रिवन. कोई भी आता है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. इवन आई एम सिटिंग डाउन हियर, बिजनेस कीप्स मूविंग ऑन. आई ट्रैवल अ लॉट, बिजनेस कीप्स मूविंग ऑन. तो सब कुछ सेटल्ड है. सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट इट्स वेरी इजी बिकॉज वी हैव क्रैक्ड डाउन द सिस्टम्स. आवर कंपनी इटसेल्फ इज सिस्टम ड्रिवन. कि लीड आती है, लीड असाइन भी हो जाती है, उस पर क्या कॉल होता है, क्या फीडबैक आता है, उसको कौन सा व्हाट्सएप कब जाना चाहिए वो भी पता है हमको. सो दैट वे वी एंगेज आवर क्लाइंट फुल्ली. उसके कौन से क्लाइंट का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहाँ पे चल रहा है, कौन सा काम बाकी है, दैट एवरीथिंग इज सिस्टम. सो वंस अ क्लाइंट इज ऑन बोर्डेड, उसका पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी है हमारे यहाँ पे कि सर आपका एग्रीमेंट स्टेज आ गया, आपका ये स्टेज आ जाएगा. वी डू दिस. सो इट्स वेरी इजी फॉर अस टू नाउ मैनेज इट आउट. एंड इट इज़ मोर अबाउट इवोल्यूशन थियरी. मतलब कभी ना कभी किसी ने बंदे ने किसी चीज़ का इन्वेंशन करा था तो ही पुट हिज बेस्ट एफर्ट. किसी ने प्लेन ढूंढा तो आज हमारी लाइफ ईजी हो रही है. किसी ने देखा कि फीमेल कपड़े धोने में दिक्कत हो रही है तो उसने रिसर्च करके वॉशिंग मशीन ढूंढा तो लाइफ इज बिकमिंग ईजी. सो कहीं ना कहीं वी बिलीव कि इन फ्रेंचाइजी पीपल आर अनेबल टू टेक राइट डिसीजन. तो कुछ इवॉल्व हमें करना पड़ेगा. सो थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ फ्रेंचाइजी सीकर्स और ब्रांड ओनर्स की लाइफ कैसे ईजी हो सके फॉर एवर. सो उस चीज़ को हम बैलेंस करके इवॉल्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं. Okay, understood. I think brand and client side से mostly I
think audience have gotten a good perspective on different things. I would also like to understand how are you guys different in this field? Like obviously bahar bahut sare advisories honge for franchisees. How are you guys making it different? So see, if you see, it's a 20-year-old industry. So पहले ये इतना डिजिटल वर्ल्ड नहीं था. So there was only one medium, we can say it was an expo or maybe a print media was another medium. फिर television आया. But what we understood that there was a need of an advisory now, because knowledge is now easily available. आप गूगल पे जाओ, वरना आज तो इजी, सबसे इजी चैट जीपीटी से पूछ लो, जवाब तो दे ही देगा. पॉइंट इज चैट जीपीटी और गूगल गिव्स यू अ नॉलेज, बट वो कोड कौन सा समझना है वहीं एडवाइजर का काम आता है. सो वी आर the advisory firm. We are not any expo firm or we are not a sales company कि आया हमने सीधा चिपकाया, या listing company की वेबसाइट पे गया, ऑर्डर कर दिया और ये हो गया. We don't believe in that. So the best part is we are the advisory firm. As I told you, India lacks awareness about franchisee advisory. So we have modeled ourselves as an advisory firm. And that's why we get clients across the globe. यहाँ से भी बाहर जाते हैं और वहाँ से भी, because advice is more important today. बाकी मिल जाएगा सब कुछ online. So it is very easy. But कौन सी advice कहाँ fit होगी वही हमारा है. So we are just solving a puzzle, getting it easily, and then we get a success. Like an example, अर्लियर जब भी कार खरीदनी रहती थी तो 10 कंपनी के शोरूम पे जाओ, टेस्टिंग करो, ट्रायल करो कौन सा मॉडल लेना है. नाउ वी हैव car-dekho.com काइंड ऑफ एग्रीगेटर्स जो आपका होमवर्क वहीं पे करवा देते हैं. इट हेल्प यू इन ड्यू डिलिजेंस. सेम विथ लाइक वी हैड अ बैकग्राउंड ऑफ इंश्योरेंस, तो देयर आर मल्टीपल कंपनीज हैव हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ प्लान. हाउ टू डिसाइड? तो ठीक है, यू कैन कंपेयर. आप अपना policybazaar.com है, तो आप उस पर अपनी डिटेल डालो. इट विल हेल्प यू इन गेटिंग व्हाट इज सुटेबल एज पर योर नीड. सो कहीं ना कहीं हम एज एन एडवाइजर वो काम कर रहे हैं कि वी आर हेल्पिंग ब्रांड ओनर एज वेल एज फ्रेंचाइजी सीकर कम ऑन वन प्लेटफॉर्म और राइट मैच मेकिंग आप कर सको. दैट इज व्हाट वी आर फोकसिंग मेजरली. Okay, understood. I have last two questions for you. Firstly, I would like to know what was the major learning that both of you had in this field that you feel any young person or any new business owner from any domain joining a business or starting their own should know about this. Any one learning that you both had? So I would say this is the stage और स्पेशली Gen Z जो मैं बात कर रहा हूँ अभी, having the highest level of resources available. जब से ह्यूमन काइंड है अभी एग्जिस्टेंस में, यूटिलाइज ऑल दोज रिसोर्सेज, बेस्ट रिसोर्सेज. डू आपका खुद से ड्यू डिलिजेंस करो, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अगर आप चूज कर रहे हो, सेम विद द बिजनेस ओनर्स, डिलीवर द बेस्ट प्रोसेसेस, थिंक ऑफ लॉन्ग विजन, तभी जाके चीज़ें हो पाएगी. दिस इज़ वॉट वी हैव लर्नड और मैं इस प्लेटफॉर्म से शेयर करना चाहूँगा. एंड आई थिंक दीनल वुड लाइक टू शेयर. से ओनली रिस्क है तो इश्क है, अभी रिस्क तो लेना ही पड़ेगा. ट्रू. ओके, दैट्स इट. आई थिंक इसी लाइन पे एंड करना बेस्ट होगा कि रिस्क है तो इसका है. थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर कमिंग इन एंड हेल्पिंग अस अंडरस्टैंड हाउ वी कैन ऑल्सो स्टार्ट एंड गेट इनटू अ फ्रेंचाइजी बिजनेस. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.